نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك الحسن الخاتمه آمین ثم آمین۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا۔ آپ کہہ دیجیے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ ایسی باتیں جو خاص طور پہ اہل کتاب نے اس وقت کہی تھی کہ جب مسلمان شروع میں قبلہ اول کی طرف جو ہے اپنی نماز کی ادائیگی کرتے تھے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک طرح سے ان کی محبت کعبہ سے جو ان سے تھی، اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں جو ہے قبلہ کا رخ پھیر دیا گیا تو مسلمانوں کی پوری جماعت نے قبلہ کا رخ جب تبدیل کیا، تو اس کے بعد جو اس طرح سے گفتگو کی گئی کہ نادان لوگ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہنے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور رسول جو ہے علیہ السلام تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں اپنے پاس سے اپنی مرضی سے، تو وہ کوئی سی بھی ایک بات نہیں کرتے۔ تو تحویل قبلہ تو ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ تبدیلی تھی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا، جس طرح کی نماز کی حالت میں جیسے وہی نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے رخ کو تبدیل کیا، تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اور اس کے علاوہ اہل کتاب کے اپنی جو تمام تاریخ گزرتی ہے اس کے اندر وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبلہ جو سا ہے وہ کس کو اللہ مقرر کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پہ سورہ البقرہ کے اندر وہ جو منظر بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادوں سے اس کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، اور تب وہ دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ جس طرح سے اہل کتاب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس قبلہ کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کر کے جو ہے نماز کو ادا کرتے تھے۔ تو آگے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا سیقول جو ہے دوسرا جز جو ہے وہ ہم نے شروع کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے، جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اس لیے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنے علم کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا میں ویسے تو ہر چیز ہی ایک امتحان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبلے کی تبدیلی تھی اس کو بھی جو ہے ایمان کا ایک امتحان بنایا اس دور کے موجود اہل کتاب اور لوگوں کے اوپر۔ گو کہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ سوال ہے کہ وہ نمازیں اور وہ جو دوسری طرف کر کے نماز پڑھی گئی، اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کہا ہے کہ اس چیز سے کوئی جو نمازیں ہیں وہ ضائع نہیں ہوگی یا ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے مزید جو آیات آئیں گی اس میں یہ بتا دی کہ قبلہ کیا ہے، مطلب کہ ایک رخ ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہاں پہ جو اس وقت کا ضروری بات کا جواب دینا تھا اللہ تعالیٰ نے موضوع کو جو ہے آیت میں وہی اس کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ تو ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اب آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائریکٹ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، کیونکہ ان کی دلی حالت اور اس آیت کے اندر ان کا دلی میلان جو کعبہ کی طرف تھا وہ بیان ہو رہا ہے۔ اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو اس آیات سے اور اس حکم سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور یہ آیات قرآن پاک کا بھی حصہ ہے، تو تا قیامت اس چیز کے اوپر دلیل کرتی ہیں کہ قبلہ کیوں جو سا ہے وہ اس کی تبدیلی کی گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا پہلے قبلہ اول کی جانب مسلمانوں کو جو ہے نماز کی طرف اس سے کہنا اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو اور آپ اگر چاہے آپ کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی اسسمنٹ کی، جیسے کہ بالکل ہم نے پہلے پڑھا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا تو فرشتوں نے ان کا جو علم ہے دیکھ کر کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا تھا تو انہوں نے بھی اسسمنٹ دی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو کسی بھی انسان کے چونکہ وقت کے وہ مالک ہیں تو غیب کا علم جو مستقبل کا اور خاص طور پہ انسانوں کی اسسمنٹ جو ان کی نیتیں اور ان کے جو کردار اس کے بعد بن جاتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرے۔ اب اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسی سختی ہے کہ انہوں نے ان کو اس طرح سے کرنے کی مجبور کیا ہے، کیونکہ انسان تو آزاد ہے اپنے عمل کے لیے اس دنیا میں، تو وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی بات مانے اور چاہے تو نہ مانے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اسسمنٹ یہ بیان کر دی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت ہی زیادہ اس چیز کی طرف توجہ کرتے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ اہل کتاب جو ان سے ہیں اس طرف جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف آئیں، تو ان کی خیر خواہی اور ان کے دل کی جو تڑپ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو بیان کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسسمنٹ یہ ہے کہ یہ بالکل اس چیز کی نہیں کریں گے، اور یہ جو موضوع ہے جس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے ان کو، اسی طریقے سے کچھ اور جگہوں کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں جو کیونکہ ان میں دو گروہ ہیں اور ان کے آپس میں جو ہے جو حسد اور اناد ہے آپس میں ان کا نہ ماننا ہے، ایک دوسرے کی چیزوں کو آپس میں جھگڑا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو لیکن آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی کہ جو چیز وہ چھپاتے تھے کہ ان کو اچھی طرح سے حق کا علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آ رہی ہے اور جو وحی لانے والے ہیں روح الامین، اور اس کے علاوہ جو وحی کے اندر باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ قبلہ جو سا ہے کعبہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، یہ تمام باتیں دین کا تمام حصہ جو ہے جو آج ہمارے پاس موجود بھی ہے اور جو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتر رہا تھا، وہ یہی ہے کہ وہ اس بات کو حق کی طرح پہچانتے ہیں لیکن کیوں چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو خیر اللہ تعالیٰ نے اب بنو اسماعیل کی طرف کی ہے یا قریش کی طرف جو یہ چیز نازل ہوئی ہے وہ اس کو ماننے، یا اس سے ان کو لگا تھا کہ ان کی ہیٹی ہو رہی ہے، اور وہ دوسری جانب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل عطا کیا ہے۔ یہ باتیں پہلے بھی آیات میں اس طرح ان کے ذہنی سوچیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کھول کر کے بیان کر رہے ہیں، اور آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے۔ خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس طرح سے خطاب کا جو مقصد ہے وہ اس طرح سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے دلوں کو خوش
करना या उनकी ख्वाहिशों पे उनके मुताबिक, क्योंकि उन लोगों का अल्लाह ताला ने एक तरह से साइको एनालिसिस करके बता दिया है कि ये चीज़ उनके दिल में है, ये चीज़ उनकी नियतों में है, इन लोगों ने नहीं इस चीज़ को मानना, तो ऐसा ना हो जाए कि इन लोगों को राज़ी करने के सिलसिले में जो है ईमान जो-सा है वो यानी कि अल्लाह ताला की बात से फिरना नहीं है, वरना इस तरह है कि अल्लाह ताला की बात से जब डेविएट किया जाएगा और उन किसी और को राज़ी करने के लिए, तो इस तरह से ईमान रुखसत हो जाता है। ये समझाने का एक अंदाज़ है। हर शख्स एक ना एक तरफ मतवज्जा हो रहा है, यानी हर इंसान का एक डायरेक्शन है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस रुख की तरफ लेकर के चलता है, उसको क्या पसंद है, उस तरफ वो मतवज्जा हो रहा है। तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। यानी अल्लाह ताला ने जब जब हम इस कुरान पाक को पढ़ेंगे तो इस तरह से बातें ऐसे है कि कलाम की सूरत में जैसे कोई बात कर रहा हो आपसे, तो अल्लाह ताला जैसे कह रहे हैं कि तुम नेकियों की तरफ दौड़ो। अब हम इस आयत का तर्जुमा जब इस तरह से पढ़ेंगे कि नेकियों की तरफ दौड़ो, यानी हमसे कहा जा रहा है। अब हमें ज़हन में ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान को अगर ज़िंदगी में अच्छे काम करने हैं, अच्छे काम जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाए वो नेकियां ही तो कहलाती हैं, और वो नेकियां अब चाहे इंसान अपने साथ कर रहा है, चाहे दूसरों के साथ कर रहा है, उसका लाज़िम तौर पे नतीजा इस दुनिया में आखिरत में हमें मिलेगा। जहाँ कहीं भी तुम होगे, अल्लाह तुम्हें ले आएगा। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी इंसान जहाँ कहीं भी हो, कहीं पे भी उसको रह रहा हो, वफ़ात हो, ज़िंदगी गुज़ारे, तो अल्लाह ताला ने इंसान को जब एकदम जमा करना है यौम महशर वाले दिन, सबको अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है। यहाँ पे ये आखिर में आयत में इसी चीज़ के ऊपर दलील है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, जो वो बयान कर रहे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। आप जहाँ से निकले अपना मुँह नमाज़ के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें, यही हक है। आपके रब की तरफ से जो कुछ आप कर रहे हो, इससे अल्लाह बेखबर नहीं है। तो इंसान को ये याद रखना चाहिए कि इंसान किसी भी हालत में, किसी भी जगह पे जो भी अमल कर रहा हो, अल्लाह ताला जानते हैं। लिहाज़ा इस बात का क्या मतलब निकला कि इंसान को कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जैसे अपना जैसे अल्लाह ताला ने अभी थोड़ी देर पहले साइको एनालिसिस जो है असेसमेंट की कुछ ग्रोहों की और उनके दिलों की, कि वो खासतौर पे अहले किताब का, और उसके बारे में कंपैरिजन करके बता दिया कि ये मुख्तलिफ जो इनके ग्रोह हैं वो नहीं इस चीज़ पे राज़ी होंगे। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपने दिल की बात जो उनसे इस तरीके से की है कि यही हक है कि जो कुछ भी इंसान कर रहा हो, यानी सच्चाई ये है कि अल्लाह ताला इस चीज़ से बाखबर होते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की खबर है। बेशक अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला हमारे अमाल को और हर चीज़ को उनकी निगाह में है, और यही चीज़ हमारा ईमान होना चाहिए। और जो इंसान फिर नेकी का अमल कर रहा है, कहीं पे भी अपनी जगह पे कायम है अल्लाह ताला की बात के ऊपर, तो अल्लाह ताला उसकी जज़ा देंगे। और जिस जगह से आप निकले, अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, जहाँ कहीं आप अपने चेहरे इसी तरफ क्या करो, यानी अब बाकायदा पहले भी एक दफ़ा बयान किया गया और दोबारा से कहा गया है कि ताकीद की गई है कि इसी तरफ करना है, ताकि लोगों की कोई हुज्जत आप पर बाकी ना रह जाए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनमें से ज़ुल्म किया। तो इनसे ना डरें, बल्कि मुझसे डरें, ताकि मैं अपनी नेमत आप पर पूरी करूँ, और इसलिए कि भी कि आप राह रास्त पाओ। यानी कि अल्लाह ताला की बात को जब माना जाएगा, तो ही जो-सी है नेक राह रास्त जो-सी है वो अता होगी, और यही सीधा नेक रास्ता है। अब देखिए, हमने पीछे बार-बार सूरह अल-फातिहा का ज़िक्र आएगा, क्योंकि सूरह अल-फातिहा में भी दुआ माँगी गई है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और यहाँ पे ये आयत जो-सी है वो उसी के जवाब में आ रही है। फिर उसके बाद क्या माँगा गया था? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी कि वो लोग जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि आप मुझसे ही डरो, ताकि मैं अपनी नेमत आप पे पूरी कर दूँ। जो वहाँ पे दुआ भी माँगी गई, सवाल भी किया गया, उस सवाल का जवाब आगे देखिए किस तरह से आया। जिस तरह हमने तुम में से एक रसूल भेजा, जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है, और तुम्हें किताब व हिकमत और वो चीज़ें सिखाता है जिनसे तुम बेइल्म थे। देखिए, दीन इब्राहिमी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये हमारा रमज़ान का महीना, और हमारे जो ये किताब हमें कलाम हमें अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, और ये जो तमाम तरीक़ेकार हैं इबादत के, रोज़ा भी इसमें शामिल है, नमाज़ भी इसमें शामिल है, और सिरात मुस्तकीम माँगना, हिदायत माँगना, कुरान के ज़रिए हिदायत हासिल करना, पाकीज़गी हासिल करना, जो इस महीने का बड़ा मकसद है। और इस किताब के पास आकर इसको सीखने का मकसद है कि हम अपनी खामियाँ, खूबियाँ और जो कांटे हम अपने साथ लगा चुके हैं, और उसको हमने चुन-चुन के निकालना है, उन चीज़ों को दुरुस्त करना है, और एक हैसियत माशरा जो है, एक उम्मत जो है, एक दूसरे के साथ खैर-ख्वाही करनी है। तो ये सारा अमल जो हो रहा है, ये किसने दुआ माँगी थी? खाना काबा की दीवारों को तामीर करते हुए, ये दीन इब्राहिमी क्यों है? इस दुआ को, इस दीन को शुरू करने वाले, इस ऐसी दुआ माँगने वाले जिसके ज़रिए हम भी आज बैठ कर के इस किताब को पढ़ रहे हैं, इस कलाम को देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो बयान कर चुके हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ये दुआएँ माँगते थे। वो उन दुआ हमने पीछे पढ़ी कि इनमें से ऐसा रसूल भेज कि जो कि इनको आपकी आयत पढ़ के सुनाए, यानी कि कलाम इलाही, यानी कि जैसे ये हमारे पास फुरकानुल हमीद कुरान है, उसको पढ़ के सुनाए, और जो कि पाकीज़ा करे उनको। और ये सारी बातें जो जिस तरीके से उन्होंने दुआ में माँगी, अल्लाह ने इसका जवाब यहाँ पे इस आयत में बिल्कुल उसी तरीके से दिया है कि जिनसे तुम बेइल्म थे। अब अल्लाह ताला इस आयत के बाद जो है ये क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी दुआ जो है वो कबूल हुई, और ये एक बहुत बड़ी नेमत अता की गई, और अल्लाह ताला ने सूरह अल-फातिहा में उस दुआ को दोबारा इब्राहीम की दुआ को किसी और तरीके से सूरह अल-फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की एक छोटी सी आयत में ढाल करके, जो कि दुनिया का सारा मकसद उसमें बयान कर दिया, और यहाँ पे अल्लाह ताला उस नेमत का इज़हार कर रहे हैं कि अब वो आपको अता हो गई। अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज़ के गवाह भी हो रहे हैं, और हमें इसको समझाया भी जा रहा है कि असल नेमत क्या है, ठीक है? तो एक बहुत बड़ी नेमत, दुनिया की तमाम जितनी भी खूबियाँ और नेमतें मिली होंगी, ये उससे सबसे बड़ी नेमत है कि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना, और उनका दिया हुआ इल्म, उनकी विरासत का, जो हमारी कह लीजिए कि याकूब अलैहिस्सलाम हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, तमाम अंबिया का ज़िक्र है कि वो अपने जाने से पहले अपनी औलादों को पूछते थे कि आप किसकी इबादत करोगे? आप वो क्या इल्म छोड़ के जा रहे हैं? और वो कहते थे आपके आबा व अजदाद की, यानी इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब के रब की। तो यहाँ पे हमें जो हिदायत है वो क्या है कि अपने रब से जुड़ना है इस किताब के ज़रिए। अब हमारे पास तो कोई नबी नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो हमारे पास वो क्या छोड़ के गए हैं? हमारे पास हमें विरसे में क्या मिला है? हमें जो हमारी जायदाद कह लीजिए, जो समझ लीजिए वो नेमत या कोई दौलत जो इस वक़्त ख़ास तौर पे मिली है, वो ये है जो जिसके साथ हमने जुड़ना है, इस पे अमल करना है, और उस वसीयत को जो कि वो उस वक़्त अपनी औलादों को, उस वक़्त के मुसलमानों को करके जा रहे थे, इन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमें क्यों बयान किया है कि असल चीज़, असल नेमत, असल ये चीज़ है जो हमारे पास है, और हमें ये चीज़ अता हो रही है, तो हमें समझना चाहिए कि हम तो सबसे ज़्यादा जो है खुशकिस्मत और खुशनसीब है, और सिर्फ ये हमारा ही हिस्सा नहीं है, इसमें जितना हम दूसरों को इस तक अल्लाह ताला की बात को पहुँचाएँगे, उन तक इस खैर को और उस नेमत को पहुँचाएँगे, अल्लाह की नज़र में भी और आलम इंसानियत में भी हम ज़्यादा फ़ायदेमंद बनेंगे।
और ये वो जायदाद है, ये वो विरासत है जिसको कि तक़सीम किया जाना चाहिए, आगे पहुँचा जाना चाहिए, जिसका बाकी भी इसी उतने ही वाली वारिस है जैसे कि हम हैं। क्योंकि दुनिया की जायदादें और दुनिया की नेमतें इंसान इतनी जो है वो उस तरह से लोगों के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि वो उसका मालिक अकेला खुद होता है। बहरहाल ये एक बहुत ही अगर इसको सोचा जाए तो एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की जो-सी है नेमत है। तो अल्लाह ताला की एक बहुत ही खूबसूरत सी एक बात कर रहे हैं, एक वादा ले रहे हैं। वो वादा क्या है? इसलिए तुम मेरा ज़िक्र करो। पहले तो बात ये है कि पहली आयत में जो आयत नंबर 151 के तर्जुमे को भी देखिए और इसकी बात को समझिए कि उन्होंने पहले एक बात क्या बयान की, ये कौन-सी नेमत दे रही है, ये कौन-सा विरसा मिल रहा है, तो लिहाज़ा अब इतनी बड़ी चीज़ दे दी है, तो क्या करो, इसलिए तुम मेरा ज़िक्र करो और मैं भी तुम्हें याद करूँगा। कौन याद करेंगे? अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला हमें याद करेंगे और मेरी शुक्रगुज़ारी करो और नाशुक्री से बचो। और ए ईमान वालों, ये नहीं कि यही ज़िंदगी का हासिल है, क्या चाह रहे हैं अल्लाह हमसे कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले इंसान, यानी ज़िक्र करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाली ज़बान और शुक्र करने वाला दिल और शुक्र करने वाली ज़बान। तो ये है जो चीज़ अल्लाह ताला चाहते हैं, ये अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी पसंदीदा किबला की तरफ रुख करने वाली बात को कहा गया, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपनी पसंद का भी इज़हार कर दिया, नेमत को पूरा करने के बाद, ठीक है? ए ईमान वालों, सब्र और नमाज़ के साथ मदद चाहो, अल्लाह सब्र वालों का साथ देता है और अल्लाह ये नहीं कि अगर मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए तो ये तो रस्ते हैं और अल्लाह की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम लोग नहीं समझते। यानी उनकी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला की, वो क्यों इस तरह की ज़िंदगी पा गए? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की खातिर जान दी और हम किसी न किसी तरह तुम्हें आज़माइश ज़रूर करेंगे। किस तरह? सूरह बकरा का वो मकाम है जहाँ पे इंसान को ये बताया जाता है कि हौसला रखो, यहाँ इस दुनिया में ज़रूर आज़माए जाएँगे तमाम के तमाम लोग। और यहाँ पे जो इस किताब को पढ़ रहे हैं तो फिर उनको ये मकाम जब आए तो हौसला रखना चाहिए कि ये चीज़ अल्लाह ने सबके लिए कही है कि दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए कि किनको खुशखबरी दे दीजिए कि इन चीज़ों ये जब वाक़यात इस तरह के हो, आज़माइशें इस तरह की आएँ, तो फिर उनको खुशखबरी दे दी। क्योंकि आगे आयत उस चीज़ को बयान कर रही है कि उनका अमल उस मुसीबत पे क्या होता होगा कि जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह की मलकियत हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। यानी जिसने ये तकलीफ हम तक आने दी, वो ही हमारा मालिक है और वो हमारा खैर खबर रखने वाला है। तो जैसे सूरह अल-मुल्क में आता है, अला यअलमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? व हुवल लतीफुल खबीर, कि वो तो वही है कि जो इंतहाई बारीक और हर तरह के इल्म को जानने वाला है। तो बात ये है कि जब कोई मुसीबत आती है तो जिस इंसान पे जो गुजर रही होती है, चाहे वो किसी चींटी के ऊपर कोई तकलीफ क्यों ना हो, यानी छोटी से छोटी मखलूक और जो बड़ी जो इंसान अपने ग्राह को देखे, तो बात ये है कि वो अल्लाह की ही मलकियत है और अल्लाह से ही राब्ता रखना चाहिए, अल्लाह ही रास्ते निकालते हैं। तो ये बात है। अब बात ये है कि हमें पता चल रहा है कि मुसीबत का कि वो आ सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला से फिर भी हम उस मुसीबतों से बचने की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में हमें कल्चर सिखाया गया। ये एक बातें इस तरह से बताई गई कि उन्होंने बाकायदा अपनी दुआओं में मुसीबतों के मतलब बीमारियों के भी नाम लेके और ये कि किस तरह से इंसान जो है मुश्किल किस्म की मुसीबतों से बचने की दुआ कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी और इंसान को जो है कोई मुसीबत में देखें तो अपने लिए उस मुसीबत से बचने की भी दुआ का बताया गया और इसके अलावा ये कि उसको जो वो मुसीबत में मौजूद है उसको भी उससे निकलने के लिए दुआ देने का जो है कल्चर सिखाया गया है। तो लिहाजा जब हम अपने दीन को सीखने लगेंगे तो हम वैसे भी कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और इन चीज़ों के अलावा मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के अलावा हम इस तरीके से जो है ना वो नहीं समझ सकते। तो बेसिकली जो ये आयत है हम इसको ज़्यादातर तो उसके ऊपर उर्फ़ आम में पढ़ते हैं जब कोई हमारे यहाँ पे वफ़ात पा जाता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि इसके तर्जुमे में और इसके साथ थोड़ा-सा तफ़सील में हमने जो बात को देखा है वो यही है कि किसी के ऊपर जब भी किसी भी किस्म की मुसीबत आए, वो मुसीबत कोई सी भी हो सकती है। बाज़ लोगों के ऊपर जैसे किसी को कोई चीज़ गुम भी गई हो या कोई चीज़ मिल नहीं रही है या आपके दिल के ऊपर बोझ है और आप किसी कोई भी मतलब इस तरह से जैसे कोई डिप्रेस भी है, तो ये कलिमात जो-सी हैं ये इसको अल्लाह ताला मतलब इसको दोहराना में चूँकि इससे अल्लाह ताला से वाबस्तगी का इज़हार हो रहा है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को यहाँ बयान किया कि जो कोई इसको बोलता है, जो इस तरह से कहते हैं कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, तो इसके बारे में अगली आयत आ रही है कि इन पर इनके रब की नवाज़िशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ़्ता हैं। हम क्या चाहते हैं? हमने अल्लाह ताला से कहा कि हमें हिदायत चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनका माइंडसेट ये होता है कि जो उनके ऊपर आज़माइश आ जाए और पहले आज़माइशें अल्लाह ताला ने बयान भी की हैं, तो क्या है कि वो अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को कोई एक अनोखी चीज़ से समझते हैं, अल्लाह की मलकियत समझते हैं कि उनका रब कौन है? यानी अल्लाह। तो मालिक जो होता है या जो रब होता है, मलकियत तो उसकी हुई ना, तो जो मालिक होता है और रब होता है, तो उसको तो हर लिहाज़ से टेक केयर करनी है, ख़्याल भी करना है, वो पालता भी है और वो इंसान की जितनी भी ज़रूरियात होंगी, वो चाहे उसकी इमोशनल नीड ही क्यों ना हो, फिज़िकल हो, हर लिहाज़ से इस दुनिया की आखिरत की, वो उन्होंने देखनी। आप इसको वालिदैन की तरफ से देखें कि वालिदैन अपने बच्चों का कितना ख़्याल करते हैं, हम पेट भी पाल लें तो हम उसका कितना ख़्याल करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो एक बहुत बड़ी बात को बयान कर रहे हैं, अक्सर औक़ात हम इस चीज़ को समझते नहीं और हम ये समझते हैं कि ठीक है, हम अल्लाह की मलकियत है, तो यहाँ इससे पहले किस चीज़ का ज़िक्र हो रहा है? आज़माइशों का, प्रॉब्लम्स का, जो इस दुनिया में आएँगी। अल्लाह ने तख़्सीस करके मुख़्तसरन उनको थोड़ा-सा पिन पॉइंट किया है। तो ये अल्लाह की तरफ लौटना क्या है? यानी इस दुनिया में जो कि थोड़े दिन के लिए आए, आदम अलैहिस्सलाम को जब कहा जा रहा था कि आप दुनिया में जाएँ, तो भी थोड़े दिनों के लिए कहा जा रहा, तो वापस लौट के कहाँ जाना है? यहाँ हम एज़ ए विज़िटर हैं, तो जब हमने वापस जाना है, तो फिर इस तमाम का जब कोई सफ़र में होता है, तो सफ़र के दौरान की चीज़ें, आने-जाने का ख़्याल और सारा कुछ साथ लेके जाने वाला जो जितनी सफ़र इख्तियार करना होता है, वो ख़ैर कर रहा होता है। लेकिन हमें यहाँ भेजने वाले कौन हैं? यहाँ से वापस लेके जाने के लिए ये हिदायत जो है, उन्होंने उतारी है ताकि हम इस दुनिया और आखिरत में जो है कामयाबी हासिल करें, इस दुनिया में गुज़ारने का ज़िंदगी गुज़ारने का एक माइंडसेट बनाएँ। तो जिनका माइंडसेट ये होता है कि वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के ऊपर अमल कर रही हैं, तो फिर अल्लाह ने कहा कि इन पे रब की नवाज़ हमने इनाम की बात की ना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो यहाँ पे वही चीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है कि इनके ऊपर इनाम होना है, इन पे रहमतें होनी है और ये हिदायत याफ़्ता। तो 3 आयत में ये बात कंसाइज़ हो गई, ठीक है? मुकम्मल इस चीज़ को अल्लाह ताला ने ये आंसर दे दिया। अब देखिए मुख्तलिफ़ पहलू हैं ज़िंदगी के, मुख्तलिफ़ मतलब इंसान के पास मरहले आते हैं, उन तमाम को अल्लाह ताला ने एक तरह से जो है वो बयान कर दिया। आगे चलते हैं सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। अब यहाँ पे टॉपिक टोटल चेंज हो गया। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं, 2 मकाम हैं जो कि मक्का के अंदर मौजूद हैं और काबा के नज़दीक हैं और ये शुरू से यहाँ पे सब मौजूद थी और हिस्ट्री में सफ़ा और मरवा की जो बात अगर पेश होती है, इस्लामिक हिस्ट्री में हम जो उस तरह से देखें, क्योंकि अहले किताब की जो बातें हैं उनसे बल्कि उनके यहाँ पे उस चीज़ का ज़िक्र नहीं है। तो क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का अगर ज़िक्र होता है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ही हुक्म दिया था कि वो अपनी बीवी हाजरा और अलैहिस्सलाम और उनके साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अभी जब वो कि बहुत ही छोटी एज में थे और बहुत ही मतलब कहना चाहिए कुछ ही दिनों के थे और उनको वहाँ पे उस बियाबान जगह के ऊपर छोड़ने का हुक्म दिया गया था और बीबी हाजरा का इन पहाड़ियों के ऊपर दीवाना वार भागना, क्योंकि जब पानी खत्म हो जाता है और वहाँ पे वो अपने बच्चे को ज़मीन पे लटा करके भागती दौड़ती हैं और अल्लाह का ज़िक्र करती हैं और फिर इसी 7 मरतबा भागने के बाद जब वो वापस आती है अपने बच्चे के पास, तो जहाँ पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ वो मतलब जैसे कि बच्चा रोता है और उसकी एड़ियाँ ज़मीन पे लगती है, तो वहाँ से आब ज़मज़म जो-सा है वो
मतलब उनको मिलता है कि वो पानी का चश्मा फूटा हुआ है और वो वहाँ पे उसको किनारों पे पत्थर रख के उसको उस लफ्ज़ को कहती है कि ज़मज़म, यानी कि यहीं पे वो मतलब कि वो ठहरा रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो वाक़या होता है और ये पूरा घराना जो किस्म की कुर्बानियों में से गुज़रता है, तो सफ़ा और मरवा को अल्लाह ताला ने, ये हज़रत बीबी हाजरा की सुन्नत है और ये अगेन कौन-सा घराना है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और वो उस हालत में, ख़ातून की उस हालत में कि जब उनका बच्चा छोटा भी है और वो अकेली भी हैं और वो अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म पे अमल कर रही हैं, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उनकी तरबियत की। और अपनी मतलब हमें हिस्ट्री में ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि कोई हमें ऐसा कौल या कोई रवायत मिलती हो जिसमें ये पता चलता हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हाजरा अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी जो है लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या ये कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी बात की हो जिससे पता चलता हो, क्योंकि उनके वालिद तो उनसे दूर रहते थे और उनकी वालिदा ने उनको वहाँ पे पाला। तो पता चलता है कि हम जैसे-जैसे पढ़ते जा रहे हैं दीन इब्राहिमी में, और वो अल्लाह ताला वाक़यात बयान कर रहे हैं कि किस तरह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जब मिलने के लिए आएँगे और आते साथ ही वो उनको ख्वाब भी बयान करेंगे कि जहाँ पे उन्होंने उनको ज़बह के लिए देखा, तो वहाँ पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया जाना और मैनर्स के साथ अपने वालिद से बात करना, ये चीज़ को किस तरह से बयान करता है कि वो तरबियत पता चलती है कि वो लोग अल्लाह को किस तरह से उनके नज़दीक थे और अल्लाह ताला के अहकामात को किस तरह से लेते थे, आपस में कोई उन लोगों का झगड़ा नहीं था। तो जब इंसान का फ़ोकस, इंसान की समझ अल्लाह के बारे में क्लियर होती है, तो वो दुनिया के झगड़ों में नहीं रहता और उनका फ़ोकस और उनका दिल और उनके कहना चाहिए शुक्र, जैसे अल्लाह ताला ने पीछे ज़िक्र किया कि अल्लाह क्या चाह रहे हैं, अल्लाह ने एक्सप्लेन किया उन आयत में कि अल्लाह ताला क्या चाह रहे हैं कि इंसान की शुक्रगुज़ार ज़बान और शुक्रगुज़ार दिल, ज़िक्र करने वाली ज़बान और ज़िक्र करने वाला दिल। तो ये 2 किस्म की जो आयत है, इनकी पीक हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली में मिलती है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस एक माइंडसेट को लेके चलते हैं, उसकी वजह से वो खलीलुल्लाह बनते हैं। सिर्फ बात को मान लेना ही नहीं है, वो जो अल्लाह ताला को चूँकि नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियात है, तो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने की जो नीयत हमें समझ आ रही है, उनका अमल हमें तो उनके बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला अमल बता रहे हैं, लेकिन ये जो नीयत है ना, ख़ास तौर पे ज़िक्र और शुक्र वाली, ये चीज़ इनके अंदर वो है। तो अल्लाह ताला ने उसके बाद इन शायर, इसको शायरुल्लाह कहा है, यानी कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है। तो ये क्यों है ऐसे? हम हज का तमाम, अभी हमने ज़िक्र किया किताब का, कुरान का और ये रमज़ान का, और ये कि ये किताब व हिकमत की तालीम से पाकीज़गी हासिल करने का, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, सफ़ा और मरवा, यहाँ पे बीबी हाजरा का जो-सा है, वो एक मेहनत के साथ और मोहब्बत के साथ जो उनका भागना-दौड़ना है, उसको अल्लाह ताला ने उस सुन्नत को कैसे जो है जारी कर दिया। जब अल्लाह ताला के लिए कोई अपने आप को वक़्फ़ कर देता है या उस हकीकत को पा लेता है और उसके ऊपर अमल करके दिखाता है, तो अल्लाह ताला भी उस मोहब्बत को, उस मेहनत को, उस अमल को ज़ाया नहीं करते। आज इतने सालों के बाद हम दैट और इस चीज़ को हमारे, हम तो तरसते हैं वहाँ पे जैसे जाने की, हर मुसलमान के दिल में ख्वाहिश होती है, जितना भी आप वो करके आएँ, फिर ख्वाहिश होती है, और वो हमारे लिए इबादत का मकाम है, वो हमारे लिए वहाँ पे अल्लाह से खुशनुदी, अल्लाह की खुशी को हासिल करने का मकाम है। और वो किसकी सुन्नत है? बीबी हाजरा की सुन्नत, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने की सुन्नत है। और उन सब के सबको अल्लाह ताला ने उनके दिल के अमाल को, उनकी नीयतों को, सबको अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। तो ये है वो बात कि देखिए कि हज भी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इसके अलावा हमें कहीं से रवायत उस तरह से नहीं मिलती कि सफ़ा और मरवा जो है वो यहाँ पे किस तरह से जो है उस ज़माने में इबादत होती थी, या इसकी मज़ीद पीछे क्या रवायत है। हाँ, अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, चूँकि वो एक बहुत बात का दौर था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के भी गुज़र जाने के बाद था, तो वो जो एक अल्लाह ताला ने मकाम मुकर्रर कर दिया हुआ था इबादत का, तो वो तो बिगड़ चुका हुआ था, क्योंकि उन लोगों को हज भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें गलत बातें आई हुई थी। इसके सिलसिले में जो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना जो हज का एक रुकन है, इसके बारे में कुरान के अल्फाज़ है कि इस चीज़ को, उस चीज़ को अख्तियार कर लेने में कोई गुनाह नहीं है। ये जो आयत का पूरा होना है वो तर्जुमे में है, इसलिए बैतुल्लाह का हज उम्रा करने वालों पर इनका तवाफ़ कर लेने में कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इसकी एक रवायत है। पहली तो बात जो बयान होगी कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है, उसका पीछे एक बैकग्राउंड है। लेकिन आगे जो उस वक़्त के दौर में ये था कि मुशरिकीन ने दोनों के ऊपर एक जो है वो बुत मुकर्रर किए हुए थे, और किसी भी नेक इंसान का जो है बुत वो जो लगा लेते थे, और वहाँ पे ये करते, उसके बाद सहाबा किराम को ये शुबा हुआ कि जब ये हुक्म इससे पहले कि मतलब वो हुआ कि शायद ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में ये बात है कि उन्होंने फरमाया, अगर इसका मतलब ये होता कि अल्लाह ताला फिर इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते कि अगर इनका कोई तवाफ़ ना करे तो कोई गुनाह नहीं। हालाँकि ऐसा नहीं था, क्योंकि बात को अरबी में बयान करने का एक मतलब होता है। तो उन्होंने इस चीज़ का जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, इस आयत को, उसकी शान नज़ूल बयान फरमाई। तो फिर जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो बुत रखे गए थे, उन लोग उनको पुकारते हुए जो है वो सफ़ा मरवा की सही की जाती थी। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ को जो है ना, जो कि उस तमाम अमाल को जो कि मुशरिकीन के थे, उनको खत्म करके इन जो असल जो रवायत थी उसको जारी किया गया। इसलिए उनका जो है ना इस चीज़ का बयान किया गया है। तो ये तो हो गई सही बुखारी की हदीस, जो कि इस सिलसिले में समझना ज़रूरी थी, क्योंकि हर चीज़ की एक लॉजिक है। इस्लाम में जो इबादत हैं और जो तमाम हमारे बेसिक आइडियोलॉजी जो है, उसको हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता चले कि जो हम इबादत कर रहे हैं उसका क्या एक तनाज़ुर है, और ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई है, क्योंकि ये हमारे रब को पसंद है। और अल्लाह ताला किसी की भी अदा को, और जैसे वो चाहें उन्होंने उस चीज़ को बनाया, और इसमें वाक़तन हमारे लिए जो है, हम उन महबूब हस्तियों को जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में ये अमल इख्तियार किया, अल्लाह ताला ने अगर उस अमल को ता क़यामत के लिए जारी कर दिया है और उनके नाम के ऊपर, उनकी आल औलाद के ऊपर दुरूद भेजा जाता है, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि अल्लाह की उनके साथ मोहब्बत क्यों है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला इसीलिए तो जो हमारी सूरह फातिहा है, वो सारा जवाब, वो 3 ग्रुप, जिसमें एक पहली बात है इनाम किए गए, तो बार-बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनसे जुड़ी हुई बात और वो तमाम दीन इब्राहीमी की तमाम ख़ुसूसियत जो है वो हमें बयान अल्लाह ताला करेंगे। तो लिहाज़ा जो है आगे हम तर्जुमा की तरफ चलते हैं। तो अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और इन्हें खूब जानने वाला है। अभी जो मैंने जो सारी बात बयान की, उसमें यही है कि अल्लाह ताला की ये जो उन्होंने सुन्नत जारी की हुई है, बीबी हाजरा वाली, की ये सफ़ा और मरवा वाली, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ कबूल की गई है, तो चूँकि इस घराने ने जिस तरीके से सब्र और शुक्र और ज़िक्र वाली बात को पूरा कर दिया अपनी ज़िंदगी में, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि साथ में कि अल्लाह का कदरदान है। तो ये क्यों बता रही है अल्लाह ताला कदरदान है? तो अल्लाह ताला ने अगर ये मामला इस तरह से किया है, तो कोई भी आज के दौर में हो या आने वाले दौर में हो, या जो जा चुके हैं, जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया, अपनी नियतों को और अमाल को वक़्फ़ कर दिया, तो क्या है कि अल्लाह ताला उसका सिला उनको इस दुनिया और आखिरत में भी देते हैं। और इस चीज़ को वो, इस अमल को वो जानते हैं। तो लिहाज़ा कोई जाने ना जाने आपकी नेकी के काम को, अमल को, तो ये देख लें कि अल्लाह ताला की निगाह जो है वो हम पे है। जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हदायत को छुपाते हैं, बावजूद इसके कि हम इसे अपनी किताब में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं, इन लोगों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत है। और ये कौन ऐसा अमल करते थे? ऐसा अमल करना, इसका मतलब हुआ कि ये मना है। क्योंकि देखिए, ये जो किताब में आयात पहले भी जो उतारी गई अहले किताब के ऊपर, अगर वो अल्लाह ताला की बताए हुए अहकामात को छुपा के अपनी मर्ज़ी का हुक्म जारी करें, उसमें अल्टरेशन कर दें, या किसी के लिए पैसा लेकर के उस चीज़ को तब्दील कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की लानत की। और ये बात याद रखिए कि
की लानत एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी उसके बाद उससे ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समझ लें कि एक तरह का अज़ाब किसी भी वक़्त उस चीज़ के ऊपर नाज़िल हो सकता है, और ये एक आखिरी हद है किसी से ताल्लुक तोड़ देने की और उससे ताल्लुक उसको उस चीज़ को छोड़ देने की। तो जिस चीज़ को अल्लाह ताला लानत कर रहे हों, और फिर साथ में कहा गया कि तमाम लानत करने वालों की लानत, यानी कि कहना चाहिए कि एक चीज़ को के बारे में बुरा जो-सा है उसको कहा गया, उसके ऊपर मज़ीद उसकी कि अल्लाह के अलावा भी जो जितनी भी आज तक लानत है वो तमाम उसके ऊपर आ जाए, तो ये तो इंतहाई बुरी चीज़ होगी। यानी अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान किया है कि अल्लाह ताला की बात को, जो कि भलाई की बात है, उसको बदल दिया जाए, तो ये इसलिए बुरी है। मगर जो लोग तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और बयान कर दें, तो मैं इनकी तौबा कबूल कर लेता हूँ। तो यानी कि जो अल्लाह ताला से बढ़ कर के अपने अमल को बुरा समझ के आए, देखिए शैतान ने अपने अमल को बुरा नहीं समझा था, वो अकड़ गया था, तो लिहाज़ा वो क्या ठहरा, वो एक तरह से जो है वो अल्लाह की नज़र में अपने दर्जे से गिर करके, मतलब पहले तो वो एक अच्छे तरीके से दर्जे के ऊपर था, फ़रिश्तों के पास आना-जाना था, लेकिन अब वो अपने दर्जे से गिर गया क्योंकि तकब्बुर की वजह से। तो जो अपनी बुराई के अमाल जो उनसे उनको छोड़ के अल्लाह से तौबा करता है, तो तौबा सबसे पहले जिस इंसान ने की थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके साथ अम्मा हव्वा। तो जो आदम और हव्वा ने अपनी गलती को तस्लीम किया और उनको अल्लाह ताला ने उनकी गलती को माफ़ किया, जो पहले हम आयत पढ़ चुके। तो बात ये है कि ये अल्लाह ताला का मतलब जैसे फ़रिश्तों ने भी अपनी फ़ौरन इस चीज़ का इज़हार कर दिया कि उनको जो चीज़ नहीं पता, उन्होंने चीज़ का इज़हार कर दिया अल्लाह ताला से, उस चीज़ की मतलब इज़हार करके एक तरह से उन्होंने अपनी तौबा का इज़हार कर दिया, तो अल्लाह ताला को ये अमल पसंद है। और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ, रहम करम करने वाला हूँ। यकीनन कुफ़ार जो अपने कुफ़र पे ही मर जाएँ, इन पर अल्लाह की फ़रिश्तों की तमाम लोगों की लानत है। ये कुफ़र करने की वजह से, जिसमें ये हमेशा रहेंगे, ना इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा, ना इन्हें ढील दी जाएगी। तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो बहुत रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान है। आसमान और ज़मीनों की पैदाइश, रात दिन का हेर-फेर, कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों के लिए हुए, समंदरों में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियाँ हैं। इनमें जो बेशतर चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, ये अब इंसान जो है इसको बतौर साइंस जो है एक इल्म के तौर के ऊपर पढ़ता है। बादलों का हो, यानी उसके अलावा ये जो तमाम मौसमों का तब्दीली का है और इल्म है, इसके अलावा जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ज़मीन और आसमान की पैदाइश के बारे में जो ये कहा है, तो ये तमाम साइंस की और जो इसके अलावा जो ये कश्तियों की ये सारी बातें कि दुनिया में समझ लीजिए जितने भी अलूम और जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने कहा कि इसमें समझने वालों के लिए निशानी क्या निशानी हो सकती है? क्योंकि जब इस सिस्टम को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसने इस चीज़ को बनाया है, तख़लीक क्या है, आसमान हो या ज़मीन हो, जो कुछ यहाँ पे सारा दिन में हो रहा होता है, मंज़र कैसे तब्दील हो रहा होता है, बादल आ रहे हैं और उस वाटर साइकिल जो यहाँ पे मौजूद है और किस तरह से लोगों की खेतों को पानी मिलता है, इंसान को भी सब कुछ करना पड़ जाता, तो कितनी बड़ी बात थी। और इसको अगर कोई मुख्तलिफ किस्म के इंसान चलाते तो इंसान के तो आपस में बहुत इख्तिलाफ़ात होते। पता चलता है कि ये एक ही खालिक का बनाया हुआ सिस्टम है, जिसमें कोई तग़य्युर और तब्दील नहीं, सिस्टम आपस में भी क्लैश नहीं कर रहे। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला चूँकि सामने मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी ये तमाम निशानियाँ, ये जो तमाम सिस्टम है, इनसे पता चलता है कि हाँ, कोई एक खालिक है, वो हमें बताती हैं, ये है उसके अंदर निशानियाँ। और हर सिस्टम इतने अच्छे तरीके से तरतीब दिया हुआ है कि किसी इंसान का कमाल नहीं है। और ये खुद बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती कि बिग बैंग हुआ, उसके बाद हर चीज़ जो-सी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक वक़्त के साथ जो है वो इस तरीके में आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका कोई बनाने वाला है। आज इस दौर में जब हम ये कहते हैं कि कोई बिल्डिंग, मटीरियल, सब चीज़ें जो जिसकी मलकियत होती है, जिसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो उसको इकट्ठा करके लोगों को लगवा करके उनको मज़दूरी दे करके एक बिल्डिंग बनाई जाती है। तो ये किस तरह हो सकता है कि वो बिल्डिंग खुद ब खुद वहाँ पे जो है वो हर चीज़ होती चली जा रही है। बनाने वाला कोई होता है, डिज़ाइन करने वाला कोई होता है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो औरों को अल्लाह के शरीक ठहराकर इनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। अल्लाह ताला ने ये तमाम बातें बयान करने के बाद फिर शिर्क का वो तज़किरा किया जो कि उस वक़्त उस माशरे में भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। बहुत से लोग तो बाकायदा बुतों की और चीज़ों की पूजा करते हैं और इसी तरीके से अहले किताब के अंदर जो शिर्क पाए जा रहे थे और अब आज के दौर में हमें महसीब मुसलमान ये देखना है कि हम किसी और शिर्क में या किसी और हस्तियों की तरफ तो मतवज्जा नहीं है। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। पहले तो अल्लाह ताला ने जो सिस्टम्स की वाली बात करके ये बयान किया कि अल्लाह ताला किस काबिल है, किस तरह के खालिक हैं और ये है उनकी ज़ात का मकाम। और फिर यही बात दोबारा शिर्क वाली बात आ गई कि अब इंसान ये देखे कि जिस चीज़ को शिर्क बनाया गया वो चाहे माज़ी की बातें हों, उन कौमों की तरफ निगाह कर लें और जिस वक़्त ये आयत उतर रही थी उस दौर के लोगों के लिए भी ये दावत थी। तो फिर आज भी ये देख लें कि जिनको इतनी अहमियत दी जा रही है, क्या वो इस काबिल है कि जो बातें अल्लाह ताला ने सिस्टम्स की भी बयान की, ज़मीन और आसमान की पैदाइश हो या ये जो सारे सिस्टम यहाँ पे चले, क्या ये शरीक इस काबिल होते हैं कि इनमें से कोई चीज़ उन्होंने की है ताकि पता चले कि जी ये इंसान से बहुत ज़्यादा काबिल हस्तियाँ हैं, लिहाज़ा इनकी इबादत की जा सकती है। लेकिन इंसान का तो जब गिरने का मकाम है वो तो ये है कि हम जो आज भी देखते हैं और हिस्ट्री में भी देखते हैं कि कहीं पे इंसान पत्थरों की पूजा कर रहा है खुद अपने हाथों से और दरख्तों की लकड़ियों से बनाए जा रहे हैं बुत, कहीं पे सितारों की पूजा हो रही है, कहीं चाँद और सूरज की पूजा चल रही है, कहीं पे किसी चीज़ की, कहीं पे इंसानों की, कहीं पे मरी हुई हड्डियों की, मतलब मुख्तलिफ दौर की जब वो कहना चाहिए पस्तियाँ हैं और कहानियाँ हैं और तो वो खाली अपने पास के सोचे हुए ख़्यालात हैं। एक तरह से शैतानी वसवसात हैं। काश के मुशरिक लोग जानते कि जब कि अल्लाह के अज़ाब को देख कर के जान लेंगे कि तमाम ताक़त अल्लाह को ही है, अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है, तो हरगिज़ शिर्क ना करें। जिस वक़्त यानी कि ज़ाहिर-सी बात है उनको वो मुस्तक़बिल का इल्म नहीं है जो अल्लाह ताला देख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला वक़्त को इस तरह से देख सकते हैं कि माज़ी की बात तो चले जो हो चुकी है वो भी बता रहे हैं हमें, लेकिन जिस वक़्त हाल में चल रहा है वो भी उनकी निगाह में है और जो आगे मुस्तक़बिल में आएगा यानी कि तमाम चीज़ें वो बना चुकी हैं। अभी हमने दो जन्नत और दोज़ख नहीं देखी, तो वो बनी हुई है, एक हकीकत है, अल्लाह ताला बयान कर रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है वो उनको वो भी पता है। तो लिहाज़ा ये चीज़ है कि अगर वो लोग देख लेते कि आगे क्या आने वाला है, जो कुछ वो अमाल कर रहे हैं उसका नतीजा, तो वो ना करते। तो जिस वक़्त पेशवा लोग यानी जिनको लोग फ़ॉलो किए कर रही होंगे, अपने ताबेदार यानी अपने फ़ॉलोअर्स से बेज़ार हो जाएँगे और अज़ाब को अपनी आँखों से देख लेंगे और तमाम रिश्ते-नाते टूट जाएँगे। ये रिश्ते-नाते कौन से बने हुए हैं? आज के दौर में तो हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि फ़ॉलोअर्स क्या होते हैं, फ़ॉलो करना क्या होता है? क्योंकि पहले दौर में भी ये चीज़ मौजूद थी क्योंकि इंसान ने दुनिया में किसी भी सतह के लिहाज़ से कोई मज़हब में या कोई पॉलिटिक्स में या किसी कहना चाहिए कि कहना चाहिए कि तिजारत के मैदान में, किसी भी मैदान में अपना कोई एक मेंटर बनाया हुआ होता है और या ये कि एक ऐसी हस्ती जिसके पास कोई अचीवमेंट होती है, वो उसको
को फ़ॉलो करते हैं ताकि वो उनसे कोई इल्म सीखें या उनके नक्शे कदम पे चले या उनके ख़्यालात उनको पसंद हैं। इसी तरह पार्टीज़ बनती हैं, जमातें बनती हैं जिनके अंदर लोग शामिल होते हैं क्योंकि वो तमाम के तमाम लोग एक जैसे ख़्याल को फ़ॉलो करने वाले, इस ख़्याल को पसंद करने वाले होते हैं। जैसे कि अगर ख़वातीन का अगर कोई क्लब हो या पार्टीज़ हो, जो कि जमात हो, ग्रुप हो उन्होंने बनाया हो, जैसे बहुत से लोगों को कुकिंग पसंद है, उनका कुकिंग का ग्रुप होता है, हम मीडिया में इसी तरीके से देखते हैं। बहुत से लोगों को अगर कढ़ाई, सिलाई-कढ़ाई पसंद है, घर को डेकोर करना पसंद है या कोई आर्किटेक्ट हैं, वो सब इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, जो उनका आपस में कॉमन एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, एक बात होती है जिसकी वजह से वो या क्रिकेट को पसंद करने वाले, किसी खेल को पसंद करने वाले हैं। तो जिस तरह की बातें होती हैं, उस हिसाब से इंसान जो है अपनी पसंद की वजह से जमा होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जब वो एक रिश्ते ये एक तरह के रिश्ते नाते हैं और इसके अलावा भी जो दुनिया में अल्लाह ताला ने रिश्ते नाते बनाए, खून के रिश्ते हों, अज़वाजी रिश्ते हों, कोई भी रिश्ते हो, तो एक वक़्त आएगा कि तमाम रिश्ते टूट जाएँगे और जिसको जिस जगह पे फ़ॉलो किया जा रहा था, इस दुनिया में बहुत से लोग ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं, फैशन को फ़ॉलो करते हैं, इल्म रखने वालों में से किसी की बात को फ़ॉलो करते हैं, तो क्या है कि वो वहाँ पे कौन से वाले बेज़ार हो जाएँगे जो कि अल्लाह वाले रास्ते पे नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि ये बात तो वहाँ होगी ना, वरना हर ग्रोथ जो है हर वो जब उनका नतीजा देख लेंगे तो वो उनसे तब वो नफ़रत करेंगे और बेजार तमाम रिश्ते टूट जाएँगे और ये ताबेदार लोग कहने लगेंगे, ये फॉलोअर्स कहने लगेंगे, काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाए तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाए जैसे कि हमसे हैं। इससे अल्लाह ने इनके अमाल दिखाएगा, उनको हसरत दिलाएगा, ये हरगिज़ जहन्नम से ना निकलेंगे। अल्लाह के लिए जो सीन अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, चूँकि उन्होंने ये चीज़ को देख रहे हैं कि ऐसा होगा, तो हमें आज इस चीज़ पे ईमान लाना चाहिए और हमेशा उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए कि जो अल्लाह की तरफ लेके जाती है, जो अल्लाह चूँकि अल्लाह ताला की बातों को मानने की तरफ लेकर के जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला से ज़्यादा हमारा कोई खैर ख्वाह नहीं है और ये जो बातें वो बयान कर रहे हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी जो है पहुँच किसी और की नहीं है। तो लिहाज़ा दुनिया में हमें उन तमाम और आज भी जैसे अगर कहा जाए कि कुछ ऐसी लीक्स और कुछ ऐसी फाइल्स जैसे अब दुनिया में लोगों को पता चलती रहती हैं वक़्त ब वक़्त, स्टेप बाय स्टेप, कुछ सालों पहले कुछ और तरह की लीक्स थी, अब कुछ और तरह की बातें पता चलती हैं। तो इससे हम सबको क्या समझ आती है कि दुनिया में जितने जितने टाइकून्स और बड़े-बड़े नाम बने हुए हैं, किसी भी फ़ील्ड में आप उठा के देख लें, तो वो उन चीज़ों को हासिल करने के लिए कहना चाहिए गैब के अंदर यानी छुपी हुई जगहों के ऊपर वो किस किस्म के काम करके उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो क्या आया हम जब वो चीज़ें हमें पता चल रही हैं, क्या हम उन अमाल को पसंद करेंगे करना? क्या आज के दौर में जब अमाल पता चल जाते हैं, तो उनकी अहमियत हमारी नज़रों में वही रह रही है कि इतना जो गंदगी सारी पता चल रही है और वो तमाम काम जो इंसानियत से घिरे हुए हैं और ऐसे जैसे कि जानवर भी ना कोई करे, तो आप मुझे सिर्फ़ ये बताइए कि अल्लाह के रास्ते पे चलने में क्या अल्लाह ताला हमसे ये दिलवा रहे हैं? नहीं, वो तो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बातें बता रहे हैं, पाकीज़गी की तरफ लेकर के जा रहे हैं और दूसरी जानिब साफ ज़ाहिर हो गया है कि जो शैतान के साथ शामिल होते हैं, दुनिया की छोटी-सी कामयाबी थोड़े से वक़्त के लिए उनको क्या-क्या नहीं करना पड़ा कि वो इंसान की सतह से गिर करके किस किस्म की जो हरकतें कर रहे हैं। तो लिहाज़ा जो पाकीज़गी, सफाई और सुथराई के साथ और हमारी कामयाबी के लिए जो फ़िक्रमंद है वो अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला के घरों में इस तरह की कोई भी बात नहीं है। तो लिहाज़ा इनको फ़ॉलो करना है और हमारे लिए इंसानों में जो मिसाल फ़ॉलो करने वाली है, जिनको हमें करना चाहिए, हमारे सबसे अच्छे मेंटर इंसानों में, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इंसानों को नियति के साथ नेक रास्ते पे चलने के लिए मिशन लेकर के आए और उसी मिशन को कंप्लीट करके गए और अल्लाह ताला से ही उन्होंने ये राह हिदायत हासिल की। लिहाज़ा ये आयत हम इस तनाज़ुर में इसको पढ़ें जो आज दुनिया में हो रहा है, तो अल्लाह ताला की बताई हुई बातें हमारे सामने ये ज़ाहिर हो गई हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला इनको इनके अमाल दिखाएगा और उनको हसरत दिलाने के लिए कोई हरगिज़ जहन्नम से नहीं निकलेंगे। लोगों ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं, इनमें से खाओ और शैतानी रास्ते पे ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई और अल्लाह के ऊपर उन बातों कहने का हुक्म देता है जिन्हें तुम्हें इल्म नहीं। इनसे जब ये कहा जाता है कि अल्लाह की किताब की ताबेदारी करो, तो ये जवाब देते हैं कि हम ये तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप-दादाओं को पाया हुआ है, इनके बाप-दादे बेअक्ल और गुम करता रहा हूँ। तो वो जो पीछे आयत है कि शैतानी रास्ते में एक बुराई का हुक्म, बेहयाई का हुक्म वो देता है, तो ये बात आज के दौर में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उनको आप देखिए, समझिए कि इन कामों पे अमल करने के बाद अंजाम दुनिया और आखिरत में क्या है, ठीक है? तो ये तमाम इंसानों के अंदर ये अल्लाह ताला ने हिस्स डाली हुई है कि गंदगी के काम से कोई भी इंसान किसी भी जगह पे मौजूद हो, किसी भी इज़्म को फ़ॉलो कर रहा हो, वो इस चीज़ को कभी भी पसंद नहीं करेगा, ऐसी गिरी हुई बातों को और ये तमाम बेहयाई और गंदगी के काम जो है शैतान को पसंद है, शैतान को पसंद है, क्योंकि वो चाहता है कि हम नाकाम हो दुनिया और आखिरत में इंसान। तो लिहाज़ा वो इस तरह की राहों पे लेके जाता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है पाकीज़गी और जो है कामयाबी की राह की तरफ लेके जा रहे हैं और यहाँ पे जिस बात का अल्लाह ताला ने फिर इस तरह से भी बताया कि ये जो लोगों को फ़ॉलो करना है, खास तौर पे बाप-दादा का ज़िक्र किया जाता है, हमारे घराने की रस्म है या इस तरह से वो किया जाता है, हमारी फैमिली में ऐसे है या इस तरह से किया जाए, तो वो नहीं, उनकी जगह अल्लाह ने नबी भेजे हुए हैं, उनकी बातों पे अमल करना है। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने तो उस तरह से भी बयान कर दिया कि चाहे बाप-दादा या जिनका ज़िक्र किया जा रहा है वो कोई भी बुज़ुर्ग हो, तो जो कि अल्लाह के रास्ते की वाली बात नहीं करे, तो चाहे उनको खुद को अकल ना हो, तो उसी को क्या इंसान फ़ॉलो करेगा? लॉजिक के साथ इंसान सोचे, क्योंकि ये जो दुनिया में ज़िंदगी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। इसी के ऊपर हमारी इस दुनिया में भी कामयाबी का दारोमदार है और आखिरत की भी ज़िंदगी का। तो कुफ़ार की मिसाल उन जानवरों की तरह से है जो अपने चरवाहे की सिर्फ़ पुकार और आवाज़ को ही सुनते हैं, समझते नहीं। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अकल है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो लोग अल्लाह की बात को झुठला रहे हैं, अमल नहीं कर रहे, उनको ऐसे जानवरों से तशबीह दी है, उनकी मिसाल ऐसे जानवर बताया है जिनके पास, क्योंकि जो इंसान को सलाहियतें तालमी है, मैंने पहले भी ज़िक्र किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें आयत पढ़ के हमें समझ आती है कि ये जो हमें हिस्स अता हुई है ना, सुनने की, बोलने की, देखने की, ये तमाम हमारे रिसेप्टर्स जो से हैं, जो कि हम इर्द-गिर्द जो हमारी दुनिया पाई जाती है, इससे हम इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं एंड देन हम अपनी ब्रेन में उसको, माइंड में और हार्ट में उसको प्रोसेस करते हैं। उसको समझ के हमारा परसेप्शन जो बनता है, हमारा जो क़ुव्वत इदराक होती है, जो हमें समझ आता है, फिर हम किसी फ़ैसले और नियत की तरफ जाते हैं और फिर हम अमल करते हैं। और इसी तरीके से इंसान को अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि ये जब चीज़ें काम नहीं करती, इनसे इंसान काम नहीं लेता, तो फिर इंसान और जानवर में तो कोई फ़र्क नहीं, बल्कि वो जानवर से भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर जब आप अपने पेट को बुलाएँ या पालतू जानवर हो या जंगली जानवर हो, वो आवाज़ को सुन करके अपने मालिक की या जो आवाज़ को सुन के वो रिएक्शंस देते हैं। वो जैसे अगर कोई पालतू जानवर हो तो अपने मालिक की तरफ दौड़ के आता है, जिस घर में वो रहता है उसका रास्ता जानता है, उसको पता होता है उसको जो आप ट्रेनिंग देके इतने बजे इसने खाना है, इतने बजे अगर उसको अपने वॉक के लिए बाहर छोड़ना है, वॉक के लिए चला जाए और उसके बाद अगर आपने उधर को घर की टेरिटरी के अंदर रखा है या किसी फार्म हाउस में रखा है, तो वो उस लाइफ़स्टाइल के आदी हो जाते हैं। तो जब कोई जानवर ऐसा कर सकते हैं, तो इंसान तो उससे कहीं समझदार मखलूक
मखलूक है, तो वो अपने एहसासात को, जो चीज़ों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा समझने के लिए? तो जब वो कुफ़्र करेंगे, तो उनको जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उनसे वो सही फ़ैसले ही नहीं कर रहे। तो लिहाज़ा बहरे, गूंगे, अंधे हैं, इन्हें अकल नहीं है। ईमान वालों, जो पाकीज़ात चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं, इन्हें खाओ, पियो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम ख़ास इसी की इबादत करते हो, अल्लाह ताला के नज़दीक, और वैसे भी जो अब रिसर्च हो चुकी है, इंसान जो खुराक खाता है, वैसे ही उसकी बॉडी के अंदर टेंडेंसीज़ क्रिएट होती हैं। तो अगर हलाल खाना खाया जाए, तो वो तो वैसे ही बीमारियों और चीज़ों से उसको बचाएगा, प्लस इंसान की सोचें भी पाकीज़ा और उस तरफ जाएँगी। ख़ास तौर पे जिन जानवरों को हमारे लिए हलाल किया गया है, उनके लाइफ़स्टाइल को देखिए, वो भी गंदगी को नहीं पसंद करते, और जिस गंदे जानवर को मना किया गया है, गोश्त में अगर देखें, तो उस जानवर को जो मना किया गया है, उसकी ज़िंदगी भी में भी गंदगी और सफाई-सुथराई का ना होना है, और हत्ता कि वो जो उसकी अपनी फैमिली को ना बना के रखना और अटैक करना, और जितनी ज़्यादा बुराइयाँ पाई जाती हैं, तो वो इस लिहाज से एक अजीब तरह की चीज़ों को, दरिंदों को अल्लाह ताला ने मना कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये सिफ़ात इंसान में नहीं क्रिएट हो जाए, इसको बचाना था। तो इंसान जो कुछ खाता है, उसके अंदर बिल्कुल वैसी ही टेंडेंसीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं। तो अल्लाह ताला ने इसी बात को, जो पाकीज़ा हलाल चीज़ का ज़िक्र किया और खुराक की अहमियत के ऊपर इंसान को फ़ोकस कराया है, कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हलाल और पाकीज़ा चीज़ें लेनी है। हलाल एक कैटेगरी है, पाकीज़गी और तय्यब एक कैटेगरी है। ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं, दोनों एक बातें नहीं हैं, ठीक है? और मिनिमम कैटेगरी जो सी है, वो हलाल है, और अगर उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए, तो तय्यब भी होना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है? तो आगे चलते हैं, तुम पर मुर्दा और बहा, आगे चूँकि ये टॉपिक खाने-पीने का ही चल रहा है, तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने आगे मज़ीद इसमें, तुम पर मुर्दा और बहावा, ऊँट और सूअर का गोश्त, और वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, हराम है। जब किसी चीज़ पे अल्लाह का नाम नहीं पुकारा जाता, और कोई उसको ज़िबा कर दे, बड़े अच्छे तरीके से, इस्लामी तरीके से ही ज़िबा करे, यानी नाम नहीं अल्लाह का भी पुकारा गया, लेकिन सारे बाकी रिचुअल्स, बाकी स्टेप्स वही हैं, तो भी वो हराम है। इसलिए कि उस पे अल्लाह का नाम नहीं है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, अल्लाह ताला ने वो अनसीन चीज़ को भी उसके ऊपर बयान कर दिया, क्योंकि जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा, तो वो शैतान के लिए हलाल हो जाता है, और शयातीन उसके ऊपर काबू पाते हैं, और वो इंसान की बॉडी में जाकर के, फिर वही बात कि इंसान के अंदर वो ऐसी तब्दीलियाँ आएँगी, कि जो इंसान खुद उसको समझ नहीं सकेगा, जब वो खराबी हो जाएगी, तो फिर वो उसको महसूस होगा, वो अल्लाह के रास्ते से दूर हो सकता है। अल्लाह ने वो रास्ता ही बंद कर दिया। लिहाज़ा इस चीज़ को हमें समझना है। अगर हम अल्लाह ताला के ऊपर, वैसे अल्लाह ताला जो इतनी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस कलाम में इतना समझा रहे हैं, खाने-पीने की चीज़ें, लाइफ़स्टाइल, सोचें, नियतें, इतनी मसाले दे रहे हैं, अगर वो चाहते तो वो सिर्फ़ एक हुक्म दे देते कि बस कह दिया गया है, करो। नहीं, बल्कि इतना ज़्यादा इल्म अता किया जा रहा है, बार-बार समझाया जा रहा है, और अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि हमारे रब बहुत रहीम व करीम है। उन्होंने जो हमें चॉइस दी है, चाह रहे हैं कि हम खुद ये फैसला करें, हम खुद इस चीज़ को सोचें, और हमारे जिस मेंटर की तरह जिस तरह से बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। वरना अगर आप मुख्तसर सा कोई 2-4 सफ़ों के ऊपर कोई एक हुक्म नाज़िल हो जाते, अहकामात ये कर लो, डूज़ एंड डोंट्स, और कुछ ना भी बताते, तब भी ठीक था, वो मालिक हैं, वो खालिक हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ओनरशिप को साइड पे रख दिया है, और अपना ताल्लुक तो बिल्कुल मुख्तसर कराया, और सारी बातें बाकी हमें समझाने में लगा दी हैं। पूरे कुरान में एक तरह का एक मेंटरशिप का स्टाइल पाया जा रहा है, बार-बार एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, समझाना। तो इससे जो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कितनी केयर कर रहे हैं, कितने केयर टेकर हैं। तो लिहाज़ा ये जो बातें बयान की जा रही हैं, अगर इंसान इनको समझते हुए इस चीज़ के ऊपर अमल करे, तो मेरा ख्याल है कि हमें बीमारियाँ भी ना लगें, और यही चीज़ है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये चीज़ें फ़ॉलो की जा रही हैं कि बड़े अच्छे तरीके से दीन पे, तो उनकी जगह से जो वफ़ूद आते थे, उस वक़्त के दौर के डॉक्टर्स के, यानी हकीम हज़रात के, जिनको इल्म था इसका, तो वो लोग वहाँ पे रह के भी वक़्त गुज़ार करके भी वापस चले गए, क्योंकि वहाँ पे इस तरह लोग बीमार ही नहीं होते थे, क्योंकि खुराक को किस तरीके से खाया जाना है, कैसे चलना है, उनके लाइफ़स्टाइल में ये तमाम चीज़ों के ऊपर वो ईमान ला करके अमल कर रहे थे। और हमारे यहाँ पे हम इस चीज़ को समझते हैं, शायद किसी और को बातें बयान की जा रही हैं, और इसका हमारे नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लाइफ़स्टाइल है, वो कैसे खाना खाते थे, कितना खाते थे, किस तरह से खाना है, उनकी जो हदीस से हमें चीज़ पता चलती है कि खाने को किस तरह से खाना चाहिए, कौन-सी हलाल चीज़ है, किस मतलब उनकी खुराक की जो सादगी है, फिर उनकी अल्टरनेट जो से उनकी ये जो रोज़ी रखना है अयाम भैंस के भी, और इसी तरीके से लाइफ़स्टाइल को लेकर के चलना है, तो इसमें गुंजाइश नहीं रह जाती कि इंसान को कोई खुराक की बद-एहतियाती से बीमारियाँ लगें। तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि इंसान जो है वो इतना मतलब उसको अल्लाह ताला इसको ये चीज़ भी हमें कॉन्शियस करा रहे हैं, हम इसके ऊपर फ़ोकस करें। बेशक जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब को छुपाते हैं, और सिर्फ थोड़ी-थोड़ी कीमत पे बेचते हैं, यकीन मानो कि अपने पेट की आग भर रही हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात भी नहीं करेगा, और अल्लाह ना ही इनको पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले अज़ाब को मग़फ़िरत के बदले खरीद लिया है। ये लोग अल्लाह का अज़ाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं? ये सवाल किया है अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला बार-बार इस टॉपिक को रेज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा जुर्म है। क्योंकि जो रब हमारे लिए एक-एक चीज़ का, छोटी-छोटी चीज़ का ख़्याल हमें बता रहे हैं, तो वो क्या, अगर उनकी बातों को इस तरह से रद्द किया जाएगा और उनकी बातों को छोड़ दिया जाएगा, तो इंसान क्या होगा, नाकाम होगा, और वो शैतान के हत्थे चढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक इंसान अगर ऐसी गलती करे, किसी 2-3 लोग इस तरह मिलकर करने शुरू हो जाए, और बाद में क्या हो, ये गलती आम हो जाए, क्योंकि इंसान एक-दूसरे को कॉपी कैट की तरह मतलब वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं, और वो इस तरह ये ज़ुल्म फैल जाएगा। तो अल्लाह ताला इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करे कि ये इसका फिर आगे बता रहे हैं कि फ्यूचर में इसका कितना अज़ाब होगा दर्दनाक, तो लिहाज़ा ऐसा अमल नहीं करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अज़ाब को मग़फ़िरत के बदले खरीद लिया है। ये लोग मतलब कितना अज़ाब बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ताला ने बताया कि इन्होंने तो एक ख़राब चीज़ को अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी के बदले में ये चीज़ इस तरह से ले ली, आख़िरत तो इतनी अच्छी है, तो वो चाहते कि उस तरह का अमल करते कि वहाँ भी कामयाबी हासिल कर लेते। तो फिर 2 ही रास्ते हैं आख़िरत में, या तो जन्नत है, या तो दोज़ख है। तो जो अल्लाह का हुक्म का इनकार किया, तो यहाँ पे टाइम ज़ाया कर दिया इस दुनिया में, और तो फिर क्या होगा आख़िरत में, फिर जो है वो अज़ाब जो-सा है वो उसकी बात की जा रही है। इन अज़ाबों का बायस यही है कि अल्लाह ने सच्ची किताब उतारी, और इस किताब में इख्तिलाफ़ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ़ हैं। सारी अच्छाई मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुँह करने में नहीं, यानी कि अल्लाह ताला ने बताया ये जो डायरेक्शन और किबला की बातें और इस तरह की बातें हो रही होती हैं, असल में ये अच्छाई नहीं है, बल्कि हकीकतन अच्छा शख़्स वो है जो अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों पर, किताबुल्लाह पर, और नबियों पर अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाला हो, जो माल से मोहब्बत के बावजूद क़राबतदारों को, यानी करीबी रिश्तेदारों को, और करीबी रिश्तेदार में घर वाले भी शामिल हो जाते हैं, तो यतीमों को, मिस्कीनों को, मुसाफ़िरों और सवाल करने वाले को दे, यानी अपने माल में से हिस्सा दे।
اور ये नहीं कि अब जैसे कि रमज़ान का महीना है, तो हमें चूँकि इसको ये शेयरिंग का महीना भी है, एक-दूसरे से अपनी नेमतें शेयर करनी चाहिए और हर एक के पास मुख़्तलिफ़ लेवल की जो नेमतें हैं, तो वो क्या है कि अल्लाह ताला ने ये जो आयत यहाँ पे आ रही हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला बकअप कर रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए और गुलामों को आज़ाद करे। उस वक़्त जब ये कुरान पाक की आयत नाज़िल हो रही थी, उस ज़मान उस दौर में और इंसानों की भी खरीदो-फ़रोख्त होती थी गुलाम के तौर पे और नस्ल दर नस्ल इस तरह से जो है वो सिलसिला चलता है, तो अल्लाह ताला ने इसको ख़त्म करने की जो है तरग़ीब दी है और नमाज़ की पाबंदी करे, ज़कात की अदायगी करे, जब वादा करे तब उसे पूरा करे, तंग-दस्ती, दुःख, दर्द, लड़ाई के वक़्त सब्र करे, यानी मुश्किलात के वक़्त में, यही सच्चे लोग हैं, यही परहेज़गार हैं। अल्लाह ने कैटेगरी ऑफ गुड पीपल जो अल्लाह के नज़दीक अच्छे हैं, वो सब बयान कर दी। वैसे अगर हम इसको रिसर्च करके भी देखें, जिसको अल्लाह अच्छा कह रहे हैं, ये तो पूरे माशरे के लिए फ़ायदेमंद इंसान है, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। तो ऐसे करने से हम सारी मखलूक़ात का भी ख़्याल कर रहे हैं, तो लिहाज़ा अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुँह करना जो है वो अच्छाई नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान ये है कि जिसको अल्लाह ताला के ऊपर ईमान और ये तमाम ख़ुसूसियात इसमें बयान कर दी है। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी और हमारी ज़ौज, वालिदैन, बहन-भाई, औलादों उनके सब तमाम मुसलमान के अंदर जो है ये चीज़ें पैदा करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ ईमान वालों, तुम पर मक़तूलों का क़िसास लेना फ़र्ज़ किया गया है, आज़ाद के बदले गुलाम के आज़ाद के बदले आज़ाद आज़ाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले, औरत औरत के बदले। यानी ये क़िसास अल्लाह ताला का एक लॉ है और हाँ, जब किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी दे दी जाए तो उसके भलाई की इत्तबा करनी चाहिए, उसे आसानी के साथ दियत अदा करनी चाहिए। 2 तरह के मामले होते हैं, किसी के साथ अगर कोई ज़ुल्म और ज़्यादती हुई, उसका नुकसान हुआ, उसके बदले में उसी तरीके से उसी लेवल की चीज़ दीजिए। और अगर वो जिसके साथ नुकसान हुआ, जो मज़लूम है, अगर वो मतलब खून बहा पे या वो वैसे राज़ी हो जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो जिस चीज़ पे राज़ी हुआ है, जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो वो चीज़ उसको अदा कर देनी चाहिए। इसको दियत की अदायगी जोन-सी है कहा जाता है। ज़माना जाहिलियत में कोई किसी भी किस्म का लॉ नहीं था, इसीलिए जो झगड़े थे, लड़ाइयाँ-झगड़े वो नस्लों दर नस्ल चलते थे। मतलब काफ़ी सालों तक, 100 सालों तक भी चल रहे होते थे। तो यहाँ पे उन चीज़ों का ख़ात्मा किया गया है, कत्ल-ओ-गारत का ख़ात्मा, ज़ुल्म का ख़ात्मा और जब कोई ज़ुल्म करने पे आता था या बदला लेने पे, वो अपनी हद क्रॉस कर जाता था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हद मुकर्रर कर दी है, ये अल्लाह का लॉ है। अब इसको जो अगर नहीं मानेगा, तो वो हदूद की खिलाफ़ वर्ज़ी करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो बाकी जगहों के ऊपर लॉ है, खुराक के मामले में हो, इबादत के मामले में हो, रिश्ते-नाते कायम करने के मामले में हो, जो रिश्ते अल्लाह के ने ब्लड के जो कायम किए हुए हैं, उनके भी मामले हों, किसी भी जगह पे विरासत के कानून, हर जगह पे ऊपर अब बाउंड्रीज़ कायम कर दी गई हैं, उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करना। वो मर्द हो या औरत, जिसने कलमा पढ़ लिया है, उसके लिए लाज़िम है कि अब जो लॉ है, अल्लाह की बात है, उसको क्रॉस नहीं करना। क्योंकि अगर इंसान क्रॉस करेगा और ये मेजॉरिटी लेवल पे होने लग जाए, तो माशरे में केओस फैलेगा, माशरे में फ़साद होगा, माशरे में ज़ुल्म और ज़्यादती होगी और ओवरऑल लोग लोग जो खराबी कर रहे होते हैं, उनको बुरा नहीं कहा जाता। फिर उसके बाद दीन इस्लाम को बुरा कहा जा रहा होता है। आज ही हम इस माशरे में होते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी रब की तरफ से ये तख़फ़ीफ़ और रहमत है, इसके बाद भी जो सरकशी करे इसे दर्दनाक अज़ाब होगा। अक्लमंदों क़िसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, इस बाइस तुम कत्ल नाहक से रुकोगे। यानी कि पहले जो उस वक़्त अरबों के यहाँ पे हो रहा था, उस चीज़ से भी बचत हो जाएगी। तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो, तो अपने माँ-बाप, क़राबादारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेज़गारों पर ये हक़ साबित है और अब जो शख़्स इसे सुनने के बाद बदल देगा, उसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा। बाकी अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। हाँ, जो शख़्स वसीयत करने वाले की जानिबदारी और गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, बस वो उनमें आपस में इस्लाह करा दे, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबान है। ईमान वालों, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है, जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। अब हम रमज़ान के महीने में दाखिल हो गए। ये वो वसीयत की आयत के बाद ये जो है रोज़े वाली जो आयत है, जिसमें अल्लाह ताला जो है बयान कर रहे हैं कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम उम्मतों पे पहले भी करते आए थे, लेकिन ये क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, ताकि इंसान अल्लाह ताला का तक़वा गिनी उसको इख्तियार करे। गिनती के चंद दिन है और ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। अल्लाह ताला किस तरह से हौसला बढ़ा रहे हैं और ये एक छोटे से 2 लफ़्ज़ की जो आयत का टुकड़ा का पहला हिस्सा है कि अय्यामम मअदूदात, तो अय्यामम मअदूदात बड़े प्यारे तरीके से जैसे किसी बच्चे को समझाया जा रहा है कि शाबाश थोड़े से दिन है। तो ये देखिए अल्लाह ताला कैसे कह रहे हैं, इसका तर्जुमा किया जाता है कि गिनती के चंद दिन ही हैं। यानी कि है तो एक महीना, लेकिन उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो ज़रा काउंट करो ना, अभी 11 महीने आपने कोई इतना बड़ा ख़ास ऐसा काम नहीं किया है, बस थोड़े से दिन आएँगे, थोड़े से दिन है। और वाक़ई जब ये दिन गुज़रने लगते हैं बरकत वाले, इंसान चाहता है कि ऐसा ही जज़्बा, ऐसा ही हमारा फ़ोकस जो है वो अल्लाह ताला की तरफ हो। तो लेकिन इन दिनों में जैसे होता है, जो बरकत होती है, शयातीन बंद होते हैं। तो ये जो लगता है कि वाक़ई में गिनती के चंद ही दिन है, तेज़ी के साथ गुज़र जाते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला जो वहाँ पे उस माशरे में जबकि लोग रोज़ा इस तरह से नहीं रखते थे पूरा-पूरा पूरा-पूरा महीना, तो अल्लाह ताला किसी तरीके से इस तरह से जो है वो मतलब उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, जैसे कि कितनी की चंद दिन है, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो, अब ये वो कंडीशंस आ रही हैं इन हालतों में कि जिनमें कि रोज़ों के बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, उसकी भी कहना चाहिए कि बाउंड्रीज़ बयान की जा रही हैं कि क्या-क्या इंसान को इजाज़त है, क्या उसमें डूज़ एंड डोंट्स आ जाते हैं। लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो, तो वो दिनों की गिनती को पूरा कर ले। ये जो बात इस तरीके से बयान की गई है, तो जो रमज़ानुल मुबारक में किसी की खास बीमारी हो सकती है कि जिसमें रोज़ा नहीं रखा जा सकता, ये कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं है। वाक़तन जिसके पास ऐसी कोई बात हो, वो ऐसा कर सकते हैं और उसकी ताकत रखने वाले की वो फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना दे, वो फिर जो शख्स नेकी में सबकत करे, वो इसी के लिए बेहतर है। और मुसाफ़िरों के लिए पहले दौर में तो खैर कोई किसी का ऐसा बहुत सफ़र होता हो, आज भी कोई ऐसा मुश्किल में सफ़र करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी हम जो सफ़र करते हैं, हमारी जो सवारियाँ हैं, तो जो हमें अगर नेमत नसीब है कि हम बड़ी आसानी के साथ सफ़र
करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको रोज़ा को रखा जा सके, लेकिन अल्लाह ताला ने छूट भी दी हुई है कि किसी के ऊपर ऐसी कोई मुश्किल बात रखे, क्योंकि छूट को इख्तियार करना पसंदीदा है कि अगर वो तकलीफ में ना हो। लेकिन अगर इंसान को कोई तकलीफ नहीं है, तो इन दिनों का नेमुल बदल कोई नहीं है। तो लिहाज़ा ये चीज़ है, समझदारी की बात है, और इंसान अपना फ़ायदा देखे कि इसमें क्या है, तो अल्लाह के हुक्म को मानने में फ़ायदा है, और अल्लाह के इस बनाए हुए दिनों में जो है वो बरकत हासिल करने में फ़ायदा है। लेकिन जिनके साथ प्रॉब्लम है, अल्लाह ने उनको उस लिहाज़ से छूट दिया। और हर इंसान हर एज में एक जैसी ताकत नहीं रखता। कोई ऐसे मुसाफिर भी होते होंगे कि वक़्तन उनको इश्यू होता होगा, तो वो इसको हासिल करें, और जो कि जिनको कोई ऐसा इश्यू नहीं है, सफ़र भी छोटा है, तो अपने रोज़े को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिनको प्रॉब्लम है, तो वो ये कि अल्लाह ताला, अब देखिए कुछ मसाकीन ऐसे होते होंगे माशरे में, हर दौर में मौजूद होते हैं कि शायद उनके पास इतनी इस्तिताअत ना हो। अल्लाह ताला क्या कल्चर मुसलमानों में आम कर रहे हैं कि जो अगर कोई बीमार है और वो क्या करे, वो फ़िदया में मिस्कीन को खाना दे, तो नेकी में सबकत करने वालों के लिए इससे बेहतर है। अब ये जो बात बयान इस तरह से की जा रही है, जो खुशी से एक मिस्कीन के बजाय ज़्यादा को खाना खिला दे। नेकी का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो भी छोटी से बड़ी लेकिन नेकी पहुँचेगी, उसका जो बदला मिलना है, वो भी इस महीने में जो है कहीं गुना है। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला इस चीज़ की तरफ जो है वो इंसान को मतलब ये चीज़ का बता रहे हैं, देखिए तुम्हारे हक़ में बेहतर काम रोज़े रखना ही है, अगर तुम बाक़िल हो, तो बीमारी कोई सी भी हो। अब साइंस इसी तरीके से कहती है, इंसान का जो फास्टिंग सिस्टम है, वो हम कि इंसान का जिस्म जो होता है, उन तमाम खराब सेल्स को, बीमारियों को खुद से खत्म करना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है, और ये एक सिस्टम है सफाई-सुथराई का। तो वाक़तन जो सौम का मतलब है कि जैसे कि ढाल को पिघला करके या धात को पिघला करके उसको मेटल के अंदर से गंदगियाँ निकल जाती थी, तो इसी तरीके से जिस्म पे जो-सा होता है, रोज़े की हालत में अंदर की गंदगियों को वो खुद ब खुद क्लीनिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। इसको इस तरह से समझिए। और रूह के अंदर की जो सारी प्रॉब्लम परेशानियाँ, हम जब कुरान के साथ जुड़ते हैं, तो हमारी तज़किया नफ्स होता है। बात आगे वही आ गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की तरफ, ठीक है? तो माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया। अच्छा, तो ये वो रमज़ान है जिसमें कुरान आया था, इसकी वही शुरू भी हुई और मुकम्मल भी होती है। तो लिहाज़ा ये जो कुरान किताब को माँगा गया था, कलाम को माँगा गया था, जिसे तज़किया नफ्स हो, किसने माँगा था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो उसको पता चला कि उनकी दुआ के मुताबिक ये अल्लाह ताला ने एक महीना बना दिया कि इसी में कुरान शुरू होता है, तो फिर तो ये महीना भी ऑटोमैटिकली उनकी दुआ का ही एक मतलब एक कहना चाहिए कि कहते हैं ना ताबीर होना। जैसे दुआ का जो चीज़ माँगी गई है, वो आगे से दुआ मुकम्मल हो रही है, तो ये उनकी दुआ की कबूलियत हो रही है यहाँ पे। ये महीना जो इतना खूबसूरत जिसकी बातें हमें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, तो ये उन्होंने हमारे लिए ये नेमत भी माँगी। तो आगे चलते हैं, तो जो लोगों को हिदायत करने वाला है, और हमने हिदायत ही तो माँगी कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम में, तो जिसमें हिदायत की, हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानी है, यानी इसी किताब के अंदर ये पता चलेगा कि हिदायत क्या है, ठीक है? और किस चीज़ को जो है वो नहीं करना, ठीक है? और तुम में से जो शख़्स इस महीने को पाए, उसे रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में हमेशा रखे कि जो रोज़ा रखने वाले हों हमेशा, और इस दुनिया से जाने तक की हालत में, और हमारी औलादों को और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को, इंसानों को इस चीज़ के ऊपर कायम रखें। देखिए अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत है, जब नेमत का इज़हार कुरान पाक में हो रहा होता है, तो हमें बिल्कुल जैसे कोई लालच करते हैं ना कि अच्छा ये सेल लगी है, ये मैं ले लूँ, तो वो जैसे ही वो ज़िक्र हुए, तो दुआ का भी वक़्त है। इसमें तो हर वक़्त भी, वैसे तो आम दिनों में भी होता है, लेकिन ये कुछ ख़ास दिन है, तो दुआएँ फ़ौरन माँगनी चाहिए। देने वाले की जेब को देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। तो देने वाले तो चाह रहे हैं, हमारे अल्लाह तो चाह रहे हैं कि हम दुआएँ करें, तो हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं, जो तुम में से इसमें महीने के रोज़े पाए, तो उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो, उसे दूसरे दिनों में गिनती को पूरा करना चाहिए, और अल्लाह का इरादा है तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम गिनती पूरा कर लो, और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो, उसका शुक्र अदा करो। जब कोई नेमत पता चल जाती है कि अल्लाह की तरफ से नेमत है, पहले तो फ़ोकस करके इस चीज़ को सीखना चाहिए कि वाक़तन ये नेमत है, ये हमारे फ़ायदे के लिए, थोड़े से देर के लिए जो हम ये भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, इससे हम दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ खरीद रहे हैं, और हम हमारे ही फ़ायदा हो रहा है। तो अल्लाह ताला की क्या है, बड़ाई बयान करनी है, अल्लाह का शुक्र करना है। फिर वही बात आ गई, अल्लाह का ज़िक्र, बड़ाई बयान करना, अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का शुक्र, यही अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब वो कभी मुझे पुकारे, कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें, मुझ पर ईमान रखें, यही इनकी भलाई का बायस है। बड़ी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला के पास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवाल-ओ-जवाब के लिए लोग हाज़िर होते थे, और दुआ की कबूलियत के लिए भी। तो अल्लाह ताला ने क्या ये बात बयान की, आज कि आज हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, और ये कल्चर है मतलब हर दौर के अंबिया का, रसूलों का, कि उनके पास उनके मानने वाले जब जाते थे, उनकी दुआएँ फ़ौरी तौर पे कबूल होती थी। ये आस लेकर के जाना कि वो हमारे लिए हाथ उठाएँगे और हमारी फ़ौरन मसला हल हो जाए। तो अब बात ये कि वो हम अल्लाह ताला ने फिर भी देखिए हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया कि उनका एक दरूद शरीफ जो है उनके ऊपर पढ़ना, और उसको कबूलियत का एक ज़रिया, वो एक ज़रिया है। फिर कलाम इलाही और ज़िक्र इलाही में से कोई भी हिस्सा पढ़ के उसके बाद दुआ का करना, और उसके बाद अज़ानों के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, मुख्तलिफ़ औक़ात है, बारिश के बाद, और इसी तरीके से नेकी का अमल करने के बाद। तो बात ये है कि ये जो अल्लाह ताला से जुड़ना है, अल्लाह से जो दुआ है, जो दुआ की जाती है, तो इंसान इंसान का दिल चाहता है कि फ़ौरी तौर पे कबूल हो। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जब कोई मुझे पुकारता है, यानी जो दुआ की जा रही होती है, अब उसका जवाब देखिए। अल्लाह ताला सबको हर हालत में वो जवाब दे रहे हैं कि उम्मीद रखिए कि वो सुन रही हैं, और वो जो सवाल किया जा रहा होता है, दुआ किया जा रही होती है, तो आप उनको कह दीजिए, किसके ज़रिए ये बात हम तक पहुँचा दी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, कि मैं तो बहुत ही करीब हूँ। अल्लाह तो शारिक से भी ज़्यादा नज़दीक है। वो कह रही है कि मैं तो बहुत ही, जो सब दुआ कर रहा है उसको कहिए कि मैं तो बहुत ही करीब हूँ हर पुकारने वाले की पुकार को। यानी जो मुझसे दुआ सवाल कर रहा होता है कि मैं उसकी उसकी पुकार को सुन रहा हूँ और मैं कबूल करता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं दुआ को बाद में नहीं करूँगा या मैं रद्द कर दूँ। वो चाहते तो कह सकते थे, उन्होंने तो कहा मैं तो कबूल कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो मेरी बात, अब अगली बात को लोग छोड़ देते हैं, तो बात ये है कि अल्लाह ताला ये समझा रहे हैं कि आपकी बात तो मैं कबूल करता हूँ, मैं आपका प्रॉब्लम को हल करूँगा, लेकिन क्या है कि मेरी बात भी तो आप माना करो। बड़े प्यारे तरीके से समझा रहे हैं, मेरी बात तो मान लिया करें। और ये क्या बातें हैं जिनको मानना है? देखिए पीछे तो वो खाने-पीने का कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हमें जो है किन चीज़ों से बचना चाहिए, कुछ हमें अल्लाह ताला गाइड कर रहे हैं, क्या हलाल है, क्या तैयब है, और ज़िंदगी में भी किस चीज़ों को भी, और ये कि ये किबला की तरफ मुँह कर लेने की बड़ी बात ही नहीं है। इन
चीज़ों पे ईमान लेके आएँ। अल्लाह ताला हमें प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, इस दुनिया में भी, आखिरत के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी जो इस दुनिया में मौजूद है, कामयाब बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला तो ये बातें बयान करें, तो हमें ये बातें सारी हमारे फ़ायदे के लिए हैं और वो हमें फिर वो एक बात कह रहे हैं कि आप मेरी बात मान लो, तो मुझ पर ईमान रखिए, यानी मुझ पे भरोसा रखिए। ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, अल्लाह ताला पे जब ट्रस्ट नहीं होता है, ये काम शायद अल्लाह ताला लोग समय पे नहीं कर पाएँगे, तभी तो वो फिर दूसरे की तरफ चले जाते हैं। तो हर रिलेशनशिप में जैसे ट्रस्ट होता है ना, उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सिंपल हमें ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि मुझ पे ट्रस्ट करो, यानी अल्लाह पे ट्रस्ट करो। तो ये इनकी भलाई का बायस है। रोज़ी की रातों में अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक तुम्हारे लिए हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनकी लिबास हो। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत पैराई में इस रिश्ते को बयान किया है। लिबास जो होता है वो हमारे जिस्म की तमाम जो ख़ुसूसियात होती है, जो कि अल्लाह ताला ने छुपाने का जैसे हुक्म दिया है, चाहे कोई इंसान के अंदर कमी भी हो तो उसका लिबास अगर खूबसूरत होता है और ख़्याल रखा गया होता है, लिबास का इंसान को खुद ख़्याल रखना होता है ना, तो ये कितनी अच्छी तौजीह है। लिबास को अगर ये कहा जाए कि लिबास अपना खुद ख़्याल रख ले तो वो नहीं कर सकता, कोई भी लिबास इस काबिल नहीं होता। तो लिहाज़ा ये है कि इंसान को अपने लिबास का ख़्याल रखना तो ये नहीं, एक दूसरे का ख़्याल रखना है और एक दूसरे की जो है ज़ीनत का जो है उसको बढ़ा के पेश किया जाता है, यानी कि जो खूबियाँ होती हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए और जो कमियाँ होती हैं उनको छुपाना जाना चाहिए और लिबास इंसान के सबसे नज़दीक होता है। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने इसको बड़े ही अच्छे पैराए में, बड़ी अच्छी मिसाल के साथ बयान फरमाया। पूरे कुरान में आप एक अल्लाह ताला के तरीक़ाकार को या उनके उनके जो बयान करने का तरीका है, वो एक समझ आता है, वो मिसालों के ज़रिए और खूबसूरत तरीके से जो है बात को बयान करते हैं। तो लिहाज़ा तुम्हारी पोशीदा ख़यानतों का अल्लाह को इल्म है, इसने तुम्हारी तौबा कबूल फ़रमाया अगर और तुमसे दरगुज़र फ़रमा लिया। अब तुम्हें इनके साथ ताल्लुक़ की और अल्लाह की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है, यानी कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते के अंदर जो इंसान के लिए खैर लिखी हुई है, वो इंसान जो है वो उसकी ख़्वाहिश का इज़हार करे। तुम खाते-पीते रहो, यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा से धागे से ज़ाहिर हो जाए, यानी वक़्त किसका की तक़सीम का इज़हार करने के लिए कि कैसे रोशनी हो रही हो या कहाँ तक इंसान को इजाज़त है कि वो रोज़े की हालत में जो है वो सहरी कब तक खा सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसको सुबह का सफ़ेद धागा और सुबह का सफ़ेद धागा से धागे से ज़ाहिर हो जाए, इसकी मिसाल के तौर पे इसको पेश किया है। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और औरतों से उस वक़्त तक ताल्लुक़ ना कायम करो जब तुम के मस्जिदों में इत्तिकाफ़ की हालत में। देखिए अल्लाह ताला बाउंड्रीज़ बयान कर रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें जो कि अल्लाह ताला का ही नाम लेकर के जो है हलाल की जाती है, ख़ास तौर पे ये अज़दवाजी रिश्ता, लेकिन रोज़े की हालत में जो कुछ हलाल चीज़ें भी, हमारा खाना-पीना भी तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम हलाल खाना-पीना खा सकते हैं, पानी भी हलाल है और इसी तरीके से क्या कहना चाहिए, जो रोज़े की हालत में हमें इस चीज़ को छोड़ना होता है, तो जो इन रिश्तों में, जो हलाल रिश्तों में से इस रिश्ते से भी जो ताल्लुक़ जौन-सा है, अल्लाह ने एक बाउंड्री कायम कर दी है, लॉ बना दिया है रोज़े की हालत में, वो कब से कब तक का क्या है टाइम, तो ये टाइम पीरियड अल्लाह ताला उस तरह से बयान कर रहे हैं। इसके अलावा इत्तिकाफ़ जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में किया जाता है और इसमें सब चीज़ों से कट के अल्लाह ताला की तरफ फ़ोकस किया जाता है, इबादत का, इंसानों से ना मिलना और ये कि इंसान ख़ास तौर पे मसाजिद के अंदर होता है, तो वहाँ पे भी इस रिश्ते को ख़ास तौर पे जो रात का भी वक़्त होगा, क्योंकि दिन रोज़ा तो दिन में रखा जाता है, रोज़े की हालत में तो ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने लॉ मुकर्रर किया है, लेकिन इत्तिकाफ़ में तो रातें भी जौन-सी होती हैं वो मसाजिद में होती है, क्योंकि वहाँ से उसी के अंदर रहना है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी ये बाउंड्री लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर दी। तो ये अल्लाह की हदूद है। देखिए आप उसको अंग्रेज़ी में कहें, किसी भी ज़बान में कि अल्लाह ताला ने एक हदूद मुकर्रर कर दी है, तुम इनके करीब भी ना जाओ। यानी करीब ना जाओ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचें, यानी कि अल्लाह ने आपकी बात बयान कर दी है, तो जब इल्म आ जाता है तो उस पे अमल किया जाता है और एक दूसरे का माल नाहक ना खाया करो। अब ये आगे आयत में जो टॉपिक है कि किस तरह से किसी का माल जौन-सा है वो उसके साथ कैसे इंसान जो है वो बर्ताव करे, नाहकों को छूट पहुँचाकर किसी का माल जुल्मों से उनसे अपना कर लिया करो, हालाँकि तुम जानते हो। लोग आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि लोगों की इबादत के वक़्त और हज के मौसम के लिए ये अल्लाह ताला ने जो चाँद और सूरज बनाया, इसे हम अपने वक़्त की तक़सीम करते हैं कि साल मतलब गुज़रता है, कैलेंडर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो लिहाज़ा ये चाँद इसलिए हज के मौसम के लिए इस तरह से बयान किया गया है। ihram की हालत में घरों के पीछे से आना कुछ नेकी नहीं है। अरब के ज़माने में या जो वो उस वक़्त वो भी हज और उम्रा के लिए जाते थे और ihram बाँध करके अगर वापस कुछ घर से लेना हो तो उस चीज़ को बुरा ख़्याल करते थे, तो घर के पीछे से फलांग करके अगर आते थे। आज के दौर में अगर आप ये देखिए कि खुदा ना ख़ास्ता अगर ये रवायत बाकी रह रही होती, तो ख़वातीन से लेकर के सबके लिए हमारे घरों में तो जिस तरह से अब आबादी बहुत ज़्यादा, घरों के पीछे भी घर मौजूद होती है, तो कहाँ से फलांग करके घर के अंदर से आया जाना था? यानी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बड़ी लॉजिकली जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, हमारे लिए आसानी कर दी है और अजीब-गरीब किस्म के लोगों ने जो रस्म-व-रिवाज बनाए हुए होते हैं, उसके अंदर कितनी मतलब एक तरह से फ़नी टच भी होता है और कुछ बेवकूफ़ी वाली बातें ही लग रही होती हैं। तो अल्लाह ताला जिस तरह से चीज़ों को बयान करे, आज हम ये सोच कर ये कह रहे हैं कि वाक़ई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे लिए इन चीज़ों को मुकर्रर नहीं किया, बल्कि इन चीज़ों को ख़त्म करवाया है। तो बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो और घरों में तो दरवाज़ों में से आया करो, अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी असल चीज़ अल्लाह से तकवा है, अल्लाह का ये वाला खौफ, ये खौफ पॉज़िटिविटी के साथ है। इस तरह नहीं कि हम अल्लाह से इस तरह से डर रहे हों कि हमें कोई फ़रिश्ता वो भेजेंगे और हमारी जो है अभी से मतलब शामत आ जाएगी, इस तरह की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जैसे पहले भी एक्सप्लेन हुआ था कि तकवा अल्लाह का इस तरह से होना चाहिए कि हमारा जो अल्लाह ताला से रिलेशनशिप है, कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं चूँकि वो ही हमारा अगर मतलब एक जैसे किसी इंसान की दोस्ती होती है, तो आप उन्हें देखिए कि वो तो सबसे ज़्यादा अच्छे बेहतरीन दोस्त हैं, बेहतरीन मौला हैं, बेहतरीन मदद करने वाले हैं। तो जब इंसान को जिस तरफ आस होती है, वहाँ पे सबसे अपना बेस्टेस्ट कंडक्ट कौन-सा है, अमल पेश किया जाता है, अपनी नीयत लगाई जाती है, वक़्त लगाया जाता है। किसी भी रिश्ते में आपकी जानिब से, किसी भी इंसान की जानिब से इनपुट होता है, तो वो अगर आप अच्छे तरीके से फ़ोकस कर रहे हैं, तो लिहाज़ा तकवा यही चीज़ें तो होती है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं भी वो उनकी निगाहों में हम हैं, हम अच्छा वाला काम करें। तो ये तकवा का एक और पहलू है। तो इसमें ये कि उनको खुशनुदी के लिए उनको खुश किया जाए, तो ये जो एक जो तरह की चीज़ है, तकवा में ये गहराई आ जाती है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला कहते हैं कि वो
रखना चाहिए, इससे कामयाबी हासिल होती है। लड़ो अल्लाह की राह में, इनसे जो तुमसे लड़ते हैं जिहाद करो और ज़्यादती ना करो। यानी जब कोई हमला मुसलमानों पे किया जाएगा तो फिर आगे से जवाब दिया जाएगा। ख़ास तौर पे ये आयत जो-सी है पहली बार जो है मुसलमानों की जानिब से जवाब देने के लिए इजाज़त उनको दी गई। इससे पहले मुसलमानों के ऊपर जिस भी तरह का ज़ुल्म हो रहा था, तो मुसलमान अपनी जानिब से उससे इधर-गुज़र कर रहे थे और उस स्टेज के अंदर मौजूद थे। तो अल्लाह याद करने वालों को पसंद नहीं करता। इन्हें मारो जहाँ भी पाओ, इन्हें निकालो जहाँ से भी तुम्हें निकाला है। मुशरिकीन मक्का ने बहुत ही ज़्यादा ज़ुल्म उस दौर में भी किए। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने अब मुसलमानों को इजाज़त दी और सुनो फितना कत्ल से ज़्यादा सख्त है। ये जो फितना होता है, जब chaos फैला होता है, असल बात किसी को पता नहीं होती। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है माशरे में फ़साद फैल जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसको नापसंद किया है और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो। अल्लाह ताला के कुछ बयान करदा जो मकामात हैं, जो कि बहुत हुर्मत वाले हैं और ताज़ीम दिए गए हैं। तो लिहाज़ा अल्लाह ताला ने इन जगहों के ऊपर लड़ाई झगड़े से मना किया, जब तक कि वो खुद तुमसे ना लड़ें। अगर वो तुमसे लड़ें तो तुम भी इन्हें मारो। यानी अगर कोई ज़्यादती कर रहा है, बार-बार हमला कर रहा है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। जो है मुसलमानों की तरफ से जो है अपनी हिफाज़त के तौर के ऊपर उनके हमले का जवाब दिया जाएगा। काफ़िरों का बदला यही है। अगर वो पास आ जाए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इनसे लड़ो जब तक कि फितना मिट ना जाए और अल्लाह का दीन गालिब ना आ जाए। अगर वो रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ। ज़्यादती तो सिर्फ़ ज़ालिमों पर ही है। हुर्मत वाले महीनों के बदले हैं, हुर्मतें अंदर बदले की हैं। तो ये जिस तरीके से इस तरह से बयान किया गया है कि हुर्मत के कुछ महीने पहले भी कैलेंडर में मुकर्रर थे 4 जो थे और अब भी जो है हुर्मत वाले महीने इसी तरीके से जो कि जिनमें ज़्यादा जैसे कि जो है ज़िलहज भी और मुहर्रम भी ये तमाम इसमें शामिल हैं जिनके अंदर हुर्मत क्यों इसलिए होती थी इसमें कि इसमें मना किया गया था कि चूँकि इबादत के लिए बहुत ज़्यादा उस तरह से महीने थे इनके अंदर लड़ाई झगड़ा मना किया गया था। चूँकि अरबों के यहाँ पे भी लड़ाई झगड़े लंबे चलते थे लिहाज़ा उन्होंने खुद से कभी कैलेंडर में आगे-पीछे वो महीनों को कर लेते थे। तो यहाँ पे जिन चीज़ों का जो है वो जो है अल्लाह ताला इस चीज़ का बयान कर रहे हैं जो तुम पर ज़्यादती करे तुम भी इसकी वजह से ज़्यादती करो और जो तुम पर की अल्लाह से डरते रहा करो जान रखो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। और कुछ वाक़यात अच्छे हिस्ट्री के अंदर भी तफासीर में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमईन को साथ लेकर के उम्रा के लिए गए थे। और लेकिन कुफ़ारे मक्का ने उन्हें मक्का जाने से जो है वो रोक दिया था और मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनके साथ जो मुआहदे तय पाए उसके बाद ज़िलक़अदा क्योंकि उस वक़्त वो ज़िलक़अदा का महीना था जो हुर्मत वाले महीनों में से था। तो जो उनको कहा गया कि आइंदा साल वो इस तरह से 3 दिन के लिए सिर्फ़ उम्रा के लिए आएँ। तो जब मुसलमान इसी तरीके से वहाँ पहुँचे उसी महीने में जो उनको कहा गया था नेक्स्ट ईयर वो वहाँ पे गए उम्रा के लिए तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई। तो ये मुसलमान को माइंडसेट कर दिया गया कि अगर इस दफ़ा भी इन्होंने कोई ज़्यादती की तो कुफ़ारे मक्का ने इस महीने की जो है वो हुर्मत को पामाल किया तो फिर इस तरह के इन मुसलमानों को भी इस चीज़ को जो है अदले-बदले की बात नहीं कि फिर मुसलमानों को भी जो है वो उस चीज़ का ख़्याल नहीं रखना चाहिए। तो ये एक लॉ के तौर के ऊपर वो लोग प्रैक्टिस करते थे हुर्मत वाले महीनों का भी लेकिन अपनी मर्ज़ी से उसमें तब्दीली भी कर दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मुसलमानों को गाइड किया कि वो उनका तर्ज़ अमल कैसे होगा। अल्लाह की राह में खर्च करो, अपने हाथ को हलाकत में ना पड़ो और सलूक और एहसान करो, अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। एहसान जो होता है ना एक्चुअली ये मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, ख़ास तौर पे वालिदैन के साथ भी होता ये है कि एक सलूक है या नेकी है जो किसी ने आपके साथ की और लेकिन अगर जब इंसान इस काबिल हो के उस नेकी का बदला चुकाने लगे तो उसमें जो एहसान जो का वर्ड जब आएगा तो उसमें ये मतलब होता है कि वो जो किसी ने नेकी की थी अब आप इस काबिल हैं कि उससे बढ़कर के नेकी कर सकें, यानी उस लेवल से आप ऊपर जा रहे हैं तो उसको एहसान ही कहा जाएगा। यानी कि थोड़ा जैसे किसी से बदला लेते वक़्त की वाली बात में कहा गया है कि ज़्यादती नहीं उस रसूल ने लेकिन नेकी के अमल में ज़्यादती को एहसान कहा जाता है और उसको अल्लाह ने पसंद किया है, ठीक है? तो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। अब वैसे पीछे जो बात अभी हुई है एहसान वाली बात, अगर हम खुद सोचें जो अल्लाह को पसंद है कि एहसान किया जाए, तो अल्लाह हमारे साथ तो हर दर्जे में एहसानात ही कर रहे हैं। हम अल्लाह ताला को तो बिल्कुल वैसा ज़िक्र और शुक्र भी नहीं दे रहे, वो नेमतों का बदला नहीं दे सकते जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ नेकी की है और हर लिहाज़ से अल्लाह ताला हमारे साथ जो कर रहे हैं, वो तो बियॉन्ड एहसान है, ठीक है? तो लिहाज़ा जो दूसरे इंसानों की तरफ हम देखें, बिलाशुबा कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतनी नेमतें नहीं दे सकता जिस तरह अल्लाह ताला ने दी होती है, लेकिन जो खैर-ख़्वाही किसी के साथ की जाती है, नेक सलूक किया जाता है, तो उसका एहसान के दर्जे में उसका भी अमल जो है अल्लाह को पसंद है। हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो, यानी अल्लाह की खातिर, अल्लाह की नियत करके। लोगों को दिखानी है किसी और वजह से नहीं। हाँ, अगर तुम लोग ले जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो उसे कर डालो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक ना पहुँचे। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हज में देखे जाते हैं। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो उसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से वो सर के बालों को मंडवा ले यानी कि शेव कर ले तो इस पर फिदिया है। यानी कि चूँकि बालों को ना काटने का हुक्म है, ना उखेड़ने का हुक्म है तो इसलिए भी उसका टैक्स पे किया जाएगा। ख्वाह रोज़े रख ले, ख्वाह सदका दे दे, ख्वाह कुर्बानी करे। ये वो तरीक़ेकार हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। जिसका जितनी इस्तिताअत है वो इस्सा करे। बस जब तुम अमन की हालत में हो तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्ता करे तो फिर उसे कुर्बानी जो मैसर हो उसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो 3 दिन के रोज़े रखे। तो हज के दिनों में रखे और साथ वापसी पर ये पूरे 10 हो गए। ये हुक्म उनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। लोगों अल्लाह से डरते रहो, जान लो कि अल्लाह सख्त ज़ाबो माला है। यानी अगर अल्लाह ताला कोई लॉ बयान कर रही है, तरीक़ाकार बयान करे, 3 तरीके बयान किए गए हैं कि किस तरीके से कोई रोज़ा रख सकता है या ये इस तरह से कर ले या इतने दिन के रोज़े। अगर 10 दिन के ये रोज़े बता रहे हैं, उसकी जगह कोई कहे नहीं मैंने तो 20 दिन के रखने हैं। अगर 10 दिन के रोज़े कहे गए हैं, कोई कहे मैं तो 10 नहीं रख सकते। हम ऐसा करेंगे कि हम तो 6 रखेंगे, कोई कहे कि हम 7 रखेंगे। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ सवाब हम किससे चाहते हैं? अल्लाह से और ये किसने मुकर्रर किया इबादत? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने जो चीज़ मुकर्रर की है उसमें हम अपनी मर्ज़ी कहाँ से कर सकते हैं? लिहाज़ा अज़ाब की बात किसी भी इबादत को बयान करने के बाद इसलिए आ रही है कि जो पहले लोगों ने गलती की थी कि वो अपनी इबादत को और अल्लाह ताला की बताई हुई बातों को तब्दील कर देते थे, तो इसको तब्दील नहीं करना। याद रखिए कि फिर यहाँ पे अल्लाह ताला ने अज़ाब का ज़िक्र किया है, ठीक है? ये इंसान की साइकी है ना, तो अल्लाह ताला ने इंसान की साइकी को, उसकी नफ्सियात को समझते हुए बिल्कुल वैसे ही बात की है। तो हज के महीने मुकर्रर हैं, यानी कि पहले से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हुए हैं हज के महीने। तो इसलिए जो शख्स इनमें हज लाज़िम कर ले वो अपनी बीवी से ताल्लुक़ करने में और गुनाह करने और गुनाह कोई सा भी गुनाह हो सकता है, जैसे कोई खुदा न ख़ास्ता चोरी अगर की जाए या ये कि किसी के साथ ज़्यादती की जाए और लड़ाई झगड़े किसी का नुकसान कर दिया जाए माल का, किसी भी चीज़ का या लड़ाई झगड़े करने से बचा रहे।
तो जो तुम जो कुछ नेकी करोगे इससे अल्लाह बाखबर है, और अपने साथ खर्च सफ़र ले लिया करो, सबसे बेहतरीन तोशा अल्लाह का डर है। तो जो चीज़ यहाँ पे बयान की जा रही है कि जब इंसान सफ़र पे निकले तो घर से पैसे लेकर के निकले, क्योंकि बाज़ लोग जो है इस तरह आज भी इस तरह से करते हैं कि जो हज के लिए निकलते हैं तो वो लोगों से पैसे चीज़ें माँग रहे होते हैं, खाने-पीने से लेके हर चीज़, क्योंकि जो कहते हैं अल्लाह के लिए हज करने जा रहे हैं, लिहाज़ा अपना कोई पैसा नहीं खर्च करना। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अपना जो है वो बंदोबस्त करके निकलो। इसके अलावा ये है कि अल्लाह से डर और खौफ के साथ निकलो, कि ये सबसे बेस्ट है इंसान के साथ सफ़र में। ए अक्लमंदों मुझसे डरते रहा करो। तुम पर अपने रब का फ़ज़ल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। यानी हज के मौसम में जब भी कोई जाता है, अगर वो वहाँ पे कोई बिज़नेस या किसी उस तरह के काम में वो अपना काम भी कोई कर ले, कुछ जो है वो रिज़्क़ हलाल भी कमा ले, तो उसमें कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफ़ात से लौटो तो मशअर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो। ये अल्लाह ताला स्टेप्स बता रहे हैं और इन स्टेप्स को फ़ॉलो करना चाहिए। और जिसका ज़िक्र करो जैसे इसने तुम्हें हिदायत दी है, हालाँकि तुम इससे पहले ना भूले हुए थे। तो ये जो बात यहाँ पे बयान हो रही है कि जिस तरह से वहाँ पहुँच करके अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, तो अल्लाह ताला ये चीज़ बयान कर रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माने में जो हज था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक में उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियाँ मुश्किल मक्का ने इसमें से कर ली थी। तो अल्लाह ताला अब वो दोबारा वापस जो है दीन इब्राहिमी वाली बात को जो है वो मुकर्रर कर रहे हैं। फिर तुम इस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं, अल्लाह से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो, जिस तरह तुम अपने बाप-दादों का ज़िक्र किया करते थे। देखिए, हज हो, नमाज़ हो, तमाम अल्लाह ताला का ही ज़िक्र है। कुरान पढ़ना भी अल्लाह का ही ज़िक्र है, तस्बीहात पढ़ना भी अल्लाह का ही ज़िक्र है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो वो 2 बातें बयान की थी कि शुक्र करने वाला दिल, शुक्र करने वाली ज़ुबान, यानी शुक्र और ज़िक्र ही अल्लाह को पसंद है। तो ये हज की इबादत में भी इंसान ना सिर्फ़ जो अपना माल लगा रहा है, लेकिन उसमें वहाँ जाके उन जगहों पे करना क्या है? अल्लाह का ज़िक्र। और मुशरिकीन के मक्का के वक़्त में हज के मौके के ऊपर मेले-ठेले लगा करते थे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, चूँकि उनकी लैंग्वेज और उनका जो अंदाज़े बयान था, किस्सा गोई थी, अरब इस चीज़ में बहुत माहिर थे। वैसे भी आज अगर हम मीडिया पे नज़र डालें, तो ये जो सब प्लेटफ़ॉर्म्स बने हुए हैं मीडिया के, वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट्स और बातें और कहानियाँ, ये सब से चीज़ें जो है चलती हैं। इंसान अभी भी इन्हीं चीज़ों में है, हत्ता कि ड्रामा और मूवीज़, इसके पीछे भी कोई कंटेंट ही किस्सा गोई मौजूद होती है, उसके ऊपर विजुअल इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का उनको एहसास दिलाया कि जो बाप-दादा की किस्से कहानियाँ, शेरो शायरी और वो चीज़ चल रही होती थी, उसकी जगह अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। क्योंकि बाप-दादा का अगर आप इस तरह से ज़िक्र करेंगे, तो उन्होंने तो आपको बख्शना नहीं है, उन्होंने तो आपको नतीजे यौमुद्दीन के मालिक वो तो नहीं है। अल्लाह ताला उस कल्चर को वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। इंसान का जो इबादत में रुख है और उसका जो ज़िक्र है, दिल में जो उसकी नीयत है, जो मोहब्बत है, वो अल्लाह की तरफ ख़ालिस होनी चाहिए। तो ये इबादत अल्लाह को इंसान के साथ जोड़ती हैं और इंसान को अल्लाह के नज़दीक करती हैं। तो बाज़ लोग वो भी हैं जो ये कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में दे दे। अब अल्लाह ताला लोगों के माइंडसेट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग किस तरह की दुआएँ माँगते हैं कि हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में, और सॉरी, ये कि हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं जो इस तरह की दुआ माँगते हैं, क्योंकि उन्होंने आखिरत का हिस्सा माँगा ही नहीं और उनका फ़ोकस भी नहीं। तो बाज़ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से निजात दे। इन्हीं की